तो उबैद भाई, ओवर टू यू। तिलावत कुरान पाक से आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم. First of all, congratulations to all of you. The verse which I just have read in front of you, Allah says, when I am sick, it is Allah who cures me. This verse reminds us that healing is a divine blessing, and as a medical professionals, we are entrusted with the noble task of serving humanity. Think about the countless lives we have touched, the smiles we have restored, and the tears we have wiped away. Every prescription written, every surgery performed, and every bedside conversation is a testament to our commitment of care. Even the Prophet, peace be upon him, once said, there is no disease that Allah has created except that He also has created its treatment. It's actually a Sahih Hadith of Sahih al Bukhari. This Hadith drives us to seek knowledge, innovate, and push boundaries to find cures for the incurable. As far as the profession is concerned, we are always about either saving life or killing people. So, as per Quran, Allah says, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. If you save a single life, you have saved the complete humanity. It is something which I mention every single where whenever I speak to students. If you save a life, you have saved humanity. But what about your mistakes? Those mistakes were based on your negligence. These are a kind of murders, the murders which no one will ask you about. But it is Allah who knows everything, who knows the reason behind your mistakes. And the previous ayah of this beautiful ayah, وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, is that من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. If you have killed a one person, single person, it's equivalent that you have killed the complete humanity. So be very careful, be very attentive to the every single guideline which we are going to give you onwards, because your compassion heals where medicine can't. You hold hands, mend hearts, and save lives. These all things are only possible when you pay attention, when you prioritize your academics or every single thing in your life, when you prioritize your academics, your profession over your life even. It's a very difficult statement to say, but I am pretty confident about it that if you prioritize your profession or your own life, then you can proceed as a doctor which Allah wants you to be. Otherwise, there are many doctors who are doing, and you do know very well what is the actual performance of our Pakistani doctors in Pakistan. What do they do in foreign countries? They do very good practice because there is a proper check and balance. While in Pakistan, there is no check and balance. So what do they do? You people know very well. Okay, so we are starting listening. We are going to start listening to our seniors. They will be guiding us towards the path which is going to lead us to
near or the closest to Allah subhanahu wa ta'ala by means of this profession, since we have just read the ayah وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. So just take this ayah as a fuel whenever you are thinking yourself as a like undisciplined or demotivated, because Allah has given you the task to heal the people. It's something blessing, it's something noble. So remember these all things whenever you are studying. And remember one thing, why you started. If your why is clear, you will not be in trouble while studying for long hours. Hope you have got my every single point. And once I am speaking with you about the embryology, you can ask me different questions as well. Thank you so much. बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला। ये थे उबैदुर रहमान, कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से। उबैदुर रहमान से आपकी मुलाकात अभी फिर होने वाली है, एम्ब्रियोलॉजी के डिटेल सेशन के हवाले से आपसे बात करेंगे। मैं इससे पहले कि मैं एम्ब्रियोलॉजी पर जाऊं, क्यों ना हम एफएम की फाउंडेशन मॉड्यूल की ऑस्पी के बारे में बात करते हैं। और फाउंडेशन मॉड्यूल की ऑस्पी के लिए हमने जिस स्पीकर को बुलाया है, उनको ऑस्पी एक्सपर्ट के तौर पे कहा जाता है जेएसएमयू के अंदर, ना सिर्फ जेएसएमयू के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। इनको सब मालूम होता है कि कौन कौन सी ऑस्पी है, कौन कौन से ऐसे स्टेशन हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, और फिर वही आ भी रहे होते हैं। तो आपसे फाउंडेशन मॉड्यूल की तमाम तर ऑस्पी पे बात करने के लिए आ रही हैं आयशा बाजी। आपका ताल्लुक JSMU 5th ईयर से है। ओवर टू यू आयशा परवेज बाजी। Assalamualaikum. Thank you so much, Munir, for the introduction and for the compliment as a OSPI expert. It's a great honor for me. अच्छा, इस सेशन को थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी बनाने के लिए या थोड़ा सा जो कहते हैं कि एक दूसरे से बात कर सकते हैं हम। क्या आप सब जो हैं अभी इस सेशन में, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम एंड कॉलेज, लाइक JSMU से हैं या डिफरेंट? आई थिंक वी हैव डिफरेंट कॉलेजेस स्टूडेंट। तो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा कम्युनिकेशन करते हैं ताकि मैं आप लोगों से अच्छे से कनेक्ट कर पाऊँ। ओके, आयशा सुहेल फ्रॉम JSMU, वेरी नाइस। ओके, निम्रा, अनम, अब्दुल्ला, आमना, ज़हरा, दैट्स वेरी नाइस। यू गाइस आर वेरी एक्टिव। तो बिल्कुल भी शाय नहीं होना, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है, JMDC, KMDC, ओके, हसन, उम्मे हबीबा। ओके, सो यू गाइस आर राइजिंग स्टार्स। फातिमा, अबीरा, नाइस। आप सब बताते जाएं, ठीक है? आई एम रीडिंग योर कमेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी चीज़ों के हवाले से। देखो, सबसे पहले यू गाइस हैव डन अ लॉट, यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट। MD कैट को क्लियर करना इज नॉट अस थिंक कि हम कहें कि बस इजी है, नो। ये एक बहुत चैलेंजिंग एग्जाम है, मेंटली भी और फिजिकली भी हम बहुत सफ़र करते हैं इसमें। नाउ यू आर डन फ्रॉम दैट थिंग। अब आप लोगों को आ गए, अब आप सब मेड स्कूल में। तो हम बात को स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है? हम सारी बातें करेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में कि देखिए, अब आप लोग मेडिकल स्कूल में तो आ गए हैं। नाउ यू विल थिंकिंग दैट कि मैं तो इतना अच्छा पढ़ूंगा कि मैं क्लास में सबसे बेस्ट बन जाऊंगा। ऑब्वियसली दिस इज अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि यू ऑल आर अ टॉपर, ठीक है? आप सब स्टूडेंट्स टॉपर हैं जो कि फिल्टर होकर आ चुके हैं अब मेड स्कूल में। तो एवरीवन विल थिंक दैट कि मैं 4 GPA लूंगा, मैं अपना गोल्ड मेडल सिक्योर करूंगा एट द एंड ऑफ सेशन, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एवरीथिंग इज अ गुड थिंग, बट अनलेस अंटिल ये चीज आपको मेंटली इफेक्ट ना करे। देखो, मेडिकल स्कूल एक ऑलरेडी एक स्ट्रेसफुल फील्ड होती है। आप इसमें कॉन्स्टेंटली पूरे ईयर में स्ट्रेस में रहेंगे, ठीक है? रियलिटी चेक देते हैं, क्यों? आपका मॉड्यूल रहेगा, कुछ टाइम बाद फाउंडेशन आई थिंक आपका थोड़ा सा लेंदी होता है, 6 to 8 वीक्स तक जा सकता है। इसके बाद ब्लड मॉड्यूल बहुत छोटा होगा, 4 वीक्स के बाद आपका मॉड्यूल, फिर आगे कुछ वीक्स के बाद, लाइक एवरी मंथ यू विल से दैट कि बस मेरा मॉड्यूल आने वाला है, आधा हो गया है, बस पेपर होने वाला है। यू गाइज विल बी इन कॉन्स्टेंट स्ट्रेस। अब चीज आती है कि एग्जाम, अब हमें पढ़ना कैसे? कुछ बच्चे क्या करेंगे, नजीब पकड़ लेंगे, भाई हमें बहुत लेंदी पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं भाई, हमने शॉर्ट वीडियोस से पढ़ना है, हम ऑस्मोसिस से पढ़ेंगे। जहां से भी पढ़ें, अगर आप लेक्चर्स अटेंड नहीं कर रहे, एग्जाम्पल, आप वही टाइम यूटिलाइज करके कहीं और से पढ़ें, जहां से भी पढ़ें, एक रिलायबल सोर्स यूज करें। डोंट गो फॉर मैनी थिंग्स कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी नो। यूज एनी वन थिंग एंड यूज योर रेफरेंस बुक, ठीक है? उसके बाद आपने चीजें करनी है।
तो हम अभी कांस्टेंट अपनी चीज पे आते हैं ऑस्पी के हवाले से। तो व्हाई आई एम कॉल्ड एज एन ऑस्पी एक्सपर्ट, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे एग्जाम पता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जाके पेपर देख के बता रही होती हूँ। नो, द थिंग इज दैट जब आप क्लास में बैठेंगे, आई विल सजेस्ट कि अगर आप वो स्टूडेंट है जो गुड लिसनर है एंड यू आर गेटिंग द थिंग्स जो कि क्लास में समझाई जा रही है, देन अटेंड द क्लास, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट, ठीक है। आई वॉज द वन जिसे क्लास में बैठना बहुत पसंद था, वो फ्रंट बेंचर वाली थिंग थोड़ी सी मेरे अंदर ज्यादा थी। तो मुझे क्लास में बैठ के कुछ टीचर्स जो थे, जब वो पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो पहले से बता देते हैं कि दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट, वी विल गिव दिस टॉपिक इन एग्जाम, एंड द थिंग एंड द ट्रिक इज दैट जो टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहा है, दैट टॉपिक विल बी कवर्ड बाय दैट टीचर इन द एग्जाम। लाइक अगर एक फिजियोलॉजी की टीचर ने आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया है, सो दैट पर्टिकुलर टीचर विल गिव द एमसीक्यूज ऑफ दैट टॉपिक। एंड नाउ JSMU हैव ऑर्गेनाइज वन थिंग कि जैसे ही वो लेक्चर देके जा रहे हैं, दे विल मेक द MCQs। दैट्स व्हाई MCQs का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज दे आर गिविंग द कॉन्सेप्चुअल थिंग्स। सही। तो अब बात यह है कि ऑस्पी को प्रिपेयर क्या कैसे करना है, ऑस्पी होती क्या है, ऑस्पी में क्या क्या चीजें होती हैं। तो बेसिकली आप स्टूडेंट्स के लिए ऑस्पी दो तरह से होती है। वन इज ऑब्जर्व, सेकंड इज अनऑब्जर्व। ऑब्जर्व ऑस्पी में क्या होता है, आप एग्जामिनर के सामने होंगे, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा होगा और आप उनको उनके क्वेश्चंस का आंसर कर रहे होंगे। ऑब्जर्व ऑस्पी को हम कहते हैं वाइवा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो अनऑब्जर्व्ड ऑस्पी होती है वो क्या होती है, वो एक कंप्यूटराइज्ड एग्जाम होता है। कंप्यूटराइज्ड एग्जाम क्या होगा कि उसके सामने आपको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कि आपको कोई पिक्चर दे दी होगी, एग्जाम्पल लेते हैं सेल सेल की पिक्चर है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिस को आपने करना है लेबल, बट यू विल नॉट राइटिंग दैट थिंग। हमारे टाइम पे तो इट्स बीन 4 years, लाइक आई एम नाउ इन फाइनल ईयर, तो 4 साल पहले तो ऐसे ही था कि ड्रैग एंड ड्रॉप था। तो आई थिंक अब भी इतना चेंज नहीं हुआ, यू गाइज विल ड्रैग एंड ड्रॉप द आंसर्स, पर ये इतना आसान नहीं होता, बिकॉज टाइमर होता है 5 मिनट का, आपके पास टाइम चल रहा होगा साइड पे, आपको पैनिक नहीं करना, ठीक है। क्या होगा, यू गाइज विल सिट इन द एग्जाम, आपने अपना पोर्टल लॉगिन किया, आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा और यूजर नेम दिया जाएगा, आपने वो डाला, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद जब आपका जो अनऑब्जर्व्ड ऑस्पी स्टार्ट होगा, तो उसके टॉप राइट या टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे टाइमर लगा होगा, ठीक है, मोस्टली टॉप राइट पे। तो वहां पे टाइमर होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, वो पैनिक कर जाते हैं, वो कहते हैं टाइम जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे तो ये पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा। एटलीस्ट एक ऑस्पी में 5 क्वेश्चंस होते हैं, आइदर दे विल बी ड्रैग ड्रॉप या MCQs बेस्ड एक क्वेश्चन दे देंगे थोड़ा सा। तो आपने पैनिक नहीं करना, आपको अगर क्वेश्चन 1 नहीं आता स्किप इट, क्वेश्चन 2 नहीं आता स्किप इट, 3 आ रहा है वो पहले कर लो, 4 आ रहा है वो पहले कर लो, 5 आ रहा है वो पहले कर लो, देन सी द टाइम के बाद आपके पास 2 से 3 मिनट बच रहे हैं, अब वो पहले दूसरे को सोच लो जो नहीं आ रहा। दिस इज अ ट्रिक टू डू एन MCQs टू सिक्योर मोर मार्क्स। पैनिक नहीं करना, ठीक है, बी रिलैक्स। मेडिकल स्कूल में जो पैनिक है ना, अगर वो आप करने लग गए और शुरू से इतना स्ट्रेस आउट हो गए, तो हाउ विल यू लीव इट, मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स होके अपनी चीजों को करना है। ओके, आई विल टेक द क्वेश्चंस एट द लास्ट, ठीक है, अभी पहले मेरी बात समझो। अब होता क्या है, ऑस्पी होती है, ऑब्जर्व अनऑब्जर्व, ऑब्जर्व में वाइवा है, वाइवा के क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, ऑस्पी के क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो एक ओवरव्यू है वो मैं आपको दूंगी फ्रॉम दी, वेट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ जिसमें मैंने कुछ पिक्चर्स निकाली हैं। तो मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच आमना एंड MM, इट्स नॉट कंप्लीट नेम, ओके, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास हमें वेट अ मिनट, ओके, इस पिक्चर के अंदर हमें क्या दिख रहा है, सो वी हैव अ कंप्लीट ओवेरियन साइकिल एंड वी हैव अ कंप्लीट स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या दे सकते हैं, ये वाली पिक्चर दे सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व में आपसे पूछेंगे व्हाट इज एंट्रम, सही, आपको यही पिक्चर, अब जरूरी नहीं यही पिक्चर है, आई एम सेइंग दैट जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप बुक पढ़ रहे हैं, जब आप कहीं से भी रीड कर रहे हैं, आइदर यू आर यूजिंग अ शॉर्ट बुक और लॉन्ग बुक, जो आपकी रेफरेंस बुक है उसकी सारी पिक्चर्स को आपने एक बार पढ़ना है। और ये जो नीचे लिखा होता है ना, ये वाली चीजें फिगर के जो नीचे लिखी है, दीज आर द गोल्डन पॉइंट्स फॉर
वाइवा, वाइवा में सारे क्वेश्चन वो यहीं से करेंगे। आपको क्या लगता है कि एक एग्जामिनर, आप खुद सोचो, अगर मैं आपको एक इंटर की बुक दूं जो कि आप पढ़कर आ चुके हो, या मैट्रिक की बुक दूं, मैं बोलूं कि भाई ये पेपर बनाए, आपको लग रहा है वो एग्जामिनर इतना फारिग होगा कि वो पूरी पूरी बुक पढ़कर आएगा? नेवर। वो क्या करेगा, वो सिर्फ उस चीज को ही पढ़ेगा। और इस चीज को, इस पिक्चर को अगर मैं कोई क्वेश्चन देना चाहूंगी तो मोस्ट प्रोबेबली मैं वही क्वेश्चन दूंगी जो इसके एंड में से कुछ चीजें हैं। आपने ये डिस्क्रिप्शन तो हर हाल में पढ़नी है। अगेन चीज ये है, अभी एम्ब्रियो के बारे में वो आपको बुक्स का बताएंगे, पर ऑस्पी के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, यू हैव टू यूज बोथ द बुक्स। बोथ बुक्स मतलब you have to use the KLM for the OSPI, and as well as you have to use the आपके पास जो एम्ब्रियो की दूसरी बुक है लैगमैन, ठीक है, लैगमैन दोनों। रीजन क्या, देखो ऑस्पी, एक एक ऑस्पी 10 मार्क्स की होती है, ठीक है, वो 10 मार्क्स आपके हाथ में होते हैं, आपकी बुक्स की पिक्चर्स ही आएंगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। हिस्ट्रो की हमारे पास जो है, वो जो हिस्ट्रो की रेफरेंस बुक है वहीं से आएगी, एम्ब्रियो की 2 बुक्स हैं उसी में से आएगी, एनाटॉमी की जितनी एक ही बुक या 2 बुक है, ग्रेज एनाटॉमी होती है, केएलएम होती है, लेकिन आपकी एफएम में सिर्फ और सिर्फ BD84 है, उससे आएगी। तो ये जो 10 मार्क्स है, एग्जाम्पल आपने वो पिक्चर उस बुक में नहीं देखी और वही उठकर आ जाती है, तो आपके 10 मार्क्स तो पूरे गए ना। तो आप लोगों ने ये चीज तो करनी है कि आप पढ़े जहां से भी, बट यू हैव टू कवर द पिक्चर्स फ्रॉम होल बुक। अब वो पिक्चर कौन कौन सी कवर करनी है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक ट्रिक है उसमें, वो कैसे करनी है। अब एग्जाम्पल मैंने ये पिक्चर वैसे ही रख दी, अब मैं आपको मेन जो मुझे बताना था वो बताती हूँ, ठीक है। ये वाली पिक्चर इंपॉर्टेंट है। अब अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पिक्चर इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं? वो पिक्चर्स जिसके नाम इजीली हाइड हो सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे इजीली हाइड कर सकती हूँ, मैं चाहूँ मैं इसे इजीली हाइड कर सकती हूँ, बिल्कुल। ये जो लाइंस हैं इनसे कितनी सेपरेट है ना ये चीज, तो ये आ सकती है इजीली, ये एग्जाम में आ सकती है। यही पिक्चर उठा के इसके नाम को, नेम्स को हाइड कर देंगे, नीचे ऑप्शन ए बी, यहाँ पे लेबल होगा, इसकी जगह पे लिखा होगा ए, यहाँ पे लिखा होगा बी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इस तरीके से लेबल होंगे। लेबल होने के बाद आपको नीचे डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे जो कि आपने इनको लेबल करना है कि ए इज दैट, बी इज दैट, सेम फॉर दिस। आगे देखो, एक ऑस्पी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एफएम मॉड्यूल। ये पिक्चर्स जो मैंने दी है ये केएलएम से दी हैं, आपको यही सारी पिक्चर्स जो है लैगबैच से भी करती है। ये लेबलिंग आपको याद होनी चाहिए, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट किस तरीके से है, ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते आपसे, बस आपको मेन मेन चीज़ों के नाम पता होने चाहिए। दिस वन, दिस वन इज पास्ट पेपर। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, जो ऑस्पीज होती है वो हमेशा रिपीट होती है। तो आपके पास एक क्रैक नाम से चीज़ आती है, क्रैक एमबीबीएस के नाम से ऑस्पी की एक पीडीएफ आती है। आपने उसे प्रिपेयर करना है, नाम लिख लो अपने पास, इट वुड बी गुड। क्रैक एमबीबीएस के नाम से आपके पास पास्ट पेपर ऑफ जेएसएमयू की सारी पीपीटीज आती हैं जो कि आपने उसे प्रिपेयर करना है, वहां से एक एक ऑस्पी को करना है, क्योंकि हमारे पास क्यू बैंक होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, और हर साल उसी क्वेश्चन बैंक से ही रिपीट होकर ऑस्पीज आती है, शफल होती हैं, कुछ आती हैं और कुछ दूसरी शिफ्ट में चली जाएंगी, बट मोस्टली रिपीट आती हैं, ठीक। ओके, तो ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये अच्छे से याद करनी है। इसमें आपको पता होना चाहिए प्रॉक्सिमल एंड कौन सा है, कॉडल और क्रेनियल कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली पिक्चर में ये आता है। ओके, आगे देखते हैं। ये वाली पिक्चर में हमारे पास है न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन। तो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपकी ऑब्जर्व में आएगी, ठीक है। ऑब्जर्व में कैसे आती है, आपसे डेज पूछे जा सकते हैं, सही। डेज पूछे जाने के बाद आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे पास न्यूरल क्रस्ट सेल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, फोल्डिंग कैसे होती है, कॉर्डल एंड में होता है, क्रेनियल एंड में क्या बनता है, स्ट्रीक किस वीक में बनती है, ये किस डे पे बनती है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये वाली पिक्चर, अगेन ये वाली, देखो अगर ये वाली पिक्चर आप स्टार्ट से पढ़ेंगे ना, ये पिक्चर बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि सारी लेबलिंग सेम ही है, बस कोई एक चीज चेंज हो रही होगी आगे जाके। तो आपने, जब आपने बुक को रीड करना है तो साथ साथ आपने इन पिक्चर्स को बहुत डिटेल में पढ़ना है। कॉर्डल एंड क्या है,
क्रेनियल क्या है, फोल्डिंग कैसे हो रही है, न्यूरल क्रैश सेल किस डे पे कितने बन रहे हैं, और ये सारी डिटेल ये दिख रहे हैं यहाँ पे 21 डे एग्जैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ नीचे मिल जाएंगी। तो यही डिटेल्स आपसे वो वाइवा में पूछते हैं, क्योंकि आपको डिफरेंट जगहों पे बहुत कंफ्यूजन होगी कि कहीं पे डेज रेंज में लिखे होंगे, कहीं पे एग्जैक्ट डेज लिखे होंगे। बट आपने जो है ये नीचे जो पिक्चर्स के नीचे डिटेल दी होगी फिगर के बाद, आपने वो डिटेल मस्ट करनी। हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, मैं सारी पीडीएफ्स आपको शेयर करूंगी। नो नो, आई एम ऑल्सो सेइंग दिस फॉर मॉड्यूल। यमुना, ये मॉड्यूल के लिए भी है। यस, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, वापस चलते हैं हम। ओके। अच्छा, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे माइक्रोस्कोपी के लिए, उनके हवाले से है। मुझे एक चीज़ बताएं। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मैं सारी पिक्चर्स शेयर करूंगी। अब हम स्टार्ट आगे चलते हैं। देखो, अब मेरी बात सुने, मैंने आपको एम्ब्रियो के हवाले से चीज़ें बताई हैं, सही? एम्ब्रियो के हवाले से जो मैंने आपको बातें बताई हैं, उसमें आपको बस 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ कि आपने जब ऑस्पी के लिए आइदर वो एफएम, देखो एफएम मॉड्यूल ऑलरेडी बहुत बल्क है, तो मेरी एडवाइस ये याद रखना कि ऑस्पी के लिए अभी से साथ-साथ प्रिपरेशन करो, बिकॉज़ आपके मॉड्यूल में भी ऑस्पीज़ आती हैं, ठीक है? वाइवा एंड ऑस्पी आएगी आपके मॉड्यूल में। आपने अभी से क्या करना है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, केएलएम भी बेस्ट है, लैगमैन भी बेस्ट है, आप कोई सी भी एक बुक यूज करोगे कोई मसला नहीं है। लेकिन पिक्चर्स जो है आपने एम्ब्रियो की दोनों बुक्स से करनी है। दोनों बुक्स से मुराद ये कि आपने अगर लैगमैन को एज ए रेफरेंस बुक पढ़ा है, कि अगर आप सारा वहीं से कर रहे हो, तो आपने उसकी पिक्चर तो पढ़ने के साथ साथ करनी है। एट द एंड जब आपका मॉड्यूल होगा, उससे 1 या 2 दिन पहले आपने बैठना है और केएलएम की पिक्चर्स को बस पढ़ना है, और उनकी जो नीचे डिटेल दी हुई है वो पढ़नी है। ऑल्सो वन थिंग कि जो आपके क्लिनिकल सिनेरियोज आएंगे, जो आपकी कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, जो आपकी अदर चीजें जो कि कंजेनाइटली एबनॉर्मल चीजें जैसे क्लिनिकल्स कह सकते हैं, तो वो हमेशा केएलएम से ही आते हैं। हमेशा डॉक्टर्स केएलएम से क्लिनिकल्स प्रिफेयर करते हैं। मेरी बातें लिख लो, अभी आपके माइंड में हो सकता है बहुत मिक्सअप हो जाए, बट ट्रस्ट में मैं चीजें रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें इजीली आप इनगल्फ कर लो चीजों को। अगर आप लैगमैन से पढ़ रहे हैं तो केएलएम की पिक्चर्स तो आपने लाजमी करनी है। बाकी पहले ये कहा जाता था कि लैगमैन की पिक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमारे साल से केएलएम की पिक्चर्स आना शुरू हुई थी एंड इट वाज अ शॉक। जेएसएमयू हमेशा शॉक देता है, ठीक है? तो आप ये मत सोचें कि ये चीज हो गई तो ये नहीं होगी। ऑस्पी एक ऐसी चीज है जिसपे मार्क्स जो हैं वो ग्रैप अप करने होते हैं। एक एक ऑस्पी 10-10 नंबर की होती है, तकरीबन 5, प्रोबेबली 5 ऑस्पीज होती है पर मॉड्यूल। 50 मार्क्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेम फॉर द वाइवा। तो 100 मार्क्स का ये होता है। एग्जाम्पल लें कि आपने 2 से 3 ऑस्पीज भी अगर गलत कर दी तो क्या होगा? 30 to 40 मार्क्स आपके डिटेक्ट हो सकते हैं इन प्रॉफ। जबकि इन वाइवा जो है इसमें भी आपका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट द मार्क्स इन द वाइवा ऑफ द स्टेशंस। बाकी आप अपने जो अल्टीमेट सीनियर्स हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में होंगे, उनसे ज्यादा अच्छे से कंफर्म कर सकते हो द मॉड्यूलर मार्क्स, ठीक है, ऑफ वाइवा। मैं प्रॉफ की बात भी कर रही हूँ साथ साथ। तो आपने मॉड्यूल में भी इसी तरह से प्रिपेयर करना है कि दोनों बुक्स को लेके चलना है, ताकि एट द एंड जब आप रिवीजन करने बैठे तो आपको मुश्किल ना हो। सही। नेक्स्ट थिंग, हिस्टोलॉजी पे आते हैं। हिस्टो में आपने क्या करना है? हिस्टो में तो मतलब 100 स्टार, मतलब मेरी एक चीज है कि मैं यूज करती हूँ एक वर्ड 7 स्टार, ठीक है? 7 स्टार इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो जो ये एपिथीलियम्स है, एपिथीलियम पहचानना आना चाहिए। ये आपकी हिस्टोलॉजी की जो मेन बुक है ना, अच्छा मैंने पिक्चर्स कहीं से भी नहीं ली, ये मेन मेन पिक्चर्स हैं आपकी जो रेफरेंस बुक्स है ना, ये उन्हीं की पिक्चर्स हैं। ये हिस्ट्री की बुक में से मैंने ली है, ठीक है? लाइक हुसैन से। लाइक हुसैन में ये पूरी पिक्चर दी हुई है। ये मेरे अपनी जो बुक मैंने यूज की थी उस टाइम की है, तो इसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है कि ये कहाँ कहाँ होता है। तो आपको पता होना चाहिए सिंपल स्क्वामस कहाँ होता है, ये वाला हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल है, ये कहाँ पे होता है, फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए।
वाइवा के अंदर मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर आपका वेट नहीं करेगा, 5 मिनट का वाइवा होगा, आप एक एग्जामिनर के सामने जाके बैठोगे, 5 मिनट वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर आए ठीक, आपको आंसर नहीं आए तो भी ठीक, बेल बजेगी, आपको आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है, आपको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, इसे कहते हैं वाइवा, ठीक है। आई थिंक आपका भी जब फर्स्ट टाइम होगा तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि किस तरह होगा। तो ये 5-5 मिनट आपको हर चीज के लिए होते हैं, ऑस्पी और वाइवा के लिए, और 5 मिनट बाद आपको वाइवा में जगह चेंज करनी पड़ती है, ऑस्पी तो खुद ही गायब हो जाती है कंप्यूटर स्क्रीन से, नेक्स्ट ऑस्पी स्टार्ट हो जाती है। सही, ओके। उसके बाद आपको ये पूरे एपिथेलियम को पहचानना आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज, आपको इनकी एग्जांपल्स आनी चाहिए। थर्ड थिंग, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप में चीजें समझ नहीं आ रही, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इतनी टेंशन मत लो, वो आपके पास माइक्रोस्कोप में भी रखेंगे और वो आपके पास ये वाली शीट भी रखेंगे जिसपे एपिथेलियम सही सही विजिबल होगी। लाइक यू कांट से दैट कि हमें दिख नहीं रहा तो हम कैसे बताएंगे, आपके पास एक शीट पे वो एपिथेलियम बनी हुई होगी। तो वो माइक्रोस्कोप में क्यों दिखा रहे हैं जब हमारे पास लेमिनेटेड शीट रखी है, आ सकता है ना माइंड में क्वेश्चन। तो वो माइक्रोस्कोपी इसलिए करवाते हैं कि वो देखते हैं बच्चे को माइक्रोस्कोप हैंडल करना आता भी है या नहीं। अब अगर आपको माइक्रोस्कोप हैंडल नहीं करना आता तो आप एफएम में ये जरूर सीखेंगे, आपको पता होना चाहिए लेंसेज कितने होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमने जो माइक्रोस्कोप में हैंडलिंग करनी है, हमने स्लाइड को पकड़ना कैसे है, स्लाइड को क्या हम बिल्कुल ऐसे थम्स रख के पकड़ते हैं या साइड से पकड़ना होता है, 2 फिंगर्स से इसकी अप्रोच होती है, थम एंड इंडेक्स फिंगर, और इस तरह आपने साइड से स्लाइड को पकड़ना होता है। तो वो हैंडलिंग आपको आनी चाहिए स्लाइड की, स्लाइड को सीधा कैसे रखना है, स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रखने के बाद किस तरीके से फोकस करना है, किस तरीके से आपने फाइन एडजस्टमेंट करनी है, कोर्स एडजस्टमेंट करनी है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए और यही एग्जामिनर आप में ऑब्जर्व करेगा जब आप ये कर रहे होंगे, बिकॉज फर्स्ट ईयर में तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ये एपिथेलियम मैंने बता दिया, 7 स्टार इंपॉर्टेंट है, इसे हर हाल में करना, सेम यही एपिथेलियम है। अब ये हमारे पास जो है थायराइड की एपिथेलियम है, तो आपने बस इसमें इतना ही बताना है कि ये कौन सी है, क्यूबाइडल है या कॉलमनार है, न्यूक्लियस की पोजीशन कहाँ होती है, जब आप पूरा थ्योरी पढ़ोगे ना तब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। सही, सेम यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ दिया गया है दैट इज द कॉलमनार एपिथेलियम, कैसे पता चलेगा, ये आपके पूरे टेक्स्ट में दिया हुआ है कि कॉलमनार में जो न्यूक्लियस होता है वो नीचे बिजेल लोकेशन में होता है और जो लेंथ है वो विड्थ से डिफरेंट होती है, सब बातें। देन हमारे पास स्किन की जो है आपकी बीडी चौरासिया में भी ये चीज़ है, आपकी फाउंडेशन मॉड्यूल में हिस्टोलॉजी में भी ये चीज़ है कि स्किन का आपको पता होना चाहिए कि स्ट्राटिफिकेशन होती है और इसे किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अब हिस्टो में क्या आता है, ये दिख रही है ये चीज़, इसे ए कर देंगे, ठीक है, और इस वाली पिक्चर को यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसे क्या लेबल कर देंगे बी, और ये दोनों नाम हाइड होंगे और आपसे ऑप्शंस में पूछेंगे, नीचे ऑप्शन दिए होंगे, ए में जो है ये दिया होगा, एक में ये दिया होगा, और पूछ मतलब आपको वहां पे सिलेक्ट करना होगा कि ए में क्या आएगा और बी में क्या आएगा। तो इस तरीके से, अब ये बहुत इजी पिक्चर है ना, ये दी जा सकती है, आई कैची है। अब यहाँ देख लें, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ एपिथेलियम कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है इसमें। दिस इज आ 7 स्टार, ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। सही, देखो जो ग्लैंड्स होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, कहाँ होते हैं, कौन सी टाइप का कहाँ पर होता है, ये नीचे दिख रहा है आपको सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप खुद देखो, अगर मैं एक एग्जामिनर हूँ और मैं बहुत काम चोर हूँ और मुझे कोई इस तरीके से दे रहा है तो मेरे तो मतलब ये तो मैंने लिखा हुआ है ना, ये तो बुक में नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसकी पिक्चर लेके एग्जाम में दे दूंगी। अब पहचानते रहे आप कौन है, मैं नीचे दे दूंगी इसकी कोई दो एक एग्जाम्पल, मतलब मैंने 3 ये वाली पिक्चर दे दी, सही है, मैंने कहा ए बी सी डी ई बताएं, ए बी बताएं, सी बताएं, डी बताएं, ई बताएं, ये 4 क्वेश्चन ये हो गए। पांचों क्वेश्चन में मैं दे दूंगी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टॉर्शियस ग्लैंड, सही, या मैं कुछ और कह दूं, अब वो ब्लैंक। असल में ऑस्पी बनाने का यही होता है ना कि 4 तो इजी इजी क्वेश्चन रखो, एक थोड़ा ट्रिकी रखो, ताकि वो जो एक चीता बच्चा होता है ना, वो जो नर्ड बच्चे होते हैं वो उनके लिए रखे जाते हैं ताकि उनको थोड़ी डिस्टिंक्शन मिल जाए। पांचवा मैंने रख दिया एमसीक्यूज। अब आपको याद होना चाहिए कि किसकी एग्जाम्पल में क्या है। ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे ऑस्पी में भी अनऑब्जर्व में भी पूछा जा सकता है।
अब यहाँ देखें मैंने यहाँ क्यों लिखा है, इसी तरह आप लोग लिख लें। जो ऑस्पी होती है ना, उसको करने का तरीका ये है कि आप जब अभी पढ़ रहे हो, आप अपनी चीजें इजी करके पिक्चर्स में डाल दो, ताकि बाद में जब आप इन चीजों को रिवाइज कर रहे हो, एट द एंड आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप चीजों को इतना डिटेल में करेंगे। आप अभी तो आप ये सोचोगे कि भाई मैं तो बहुत पढ़ाकू बच्चा हूँ, इंडीड यू आर, बट आप ये सोचोगे कि जब जून होगी तो मैं ये कवर कर लूंगा, जब हमारे पास प्रेप लीव होगी तो मैं ये चीजें कर लूंगा, बट एट द एंड आप कुछ भी नहीं कर पाते। वी डिड इट। हम हर साल कहते हैं कि हम अगले साल जो है, बस अगले साल तो वही झंडे गाड़ देंगे हम, पर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इतने स्ट्रेस आउट होते हैं, जब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो हम पागल हो जाते हैं और हम बस इंजॉय में चले जाते हैं। ठीक है, तो रॉन्ग नहीं है, ये एक ह्यूमन कह सकते हैं कि एक पैटर्न है कि जब हमें थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो हम अपने आप को एंजॉय करने लग जाते हैं या इन चीज़ों में। लेकिन आपने अभी से अपने जो मेंटली तौर पे रेडी होना है प्रॉफ के लिए। देखो, एक होती है स्मार्ट स्टडी, एक होती है हार्ड। आपने अब स्मार्ट स्टडी की तरफ आना है, आपने अपनी चीज़ें प्रॉफ के लिए आसान करनी है, सही। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एफएम के हवाले से। ये वाले, ये आई थिंक मैंने ये मैंने इसलिए दिया है, वैसे ये आपके ब्लड मॉड्यूल का है, पर ये आपकी जो बीडी चौरासिया है ना उसके अंदर है, सही है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से कर लेना है, एक ये, और हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रस कार्टिलेज जो हमारे पास है, इन तीनों के डिफरेंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे इस तरह यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने ऑस्पी रिलेटेड आपको एक एक चीज डिफाइन करनी आनी चाहिए, बिकॉज आपसे जब आपका वाइवा होगा तो आपसे पूछेंगे कि ये राउंड स्पेस क्या है, ये डार्क कलर क्यों है, इसका नाम क्या है, ये पेरिसेल्युलर मैट्रिक्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पिक्चर को भी मैं 7 स्टार या 5 to 7 स्टार कहूंगी, क्योंकि ये ब्लड मॉड्यूल में भी आ सकता है ना। तो मैं इसको ये लेबल कर रही हूँ, तो आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने बहुत गिनी चुनी पिक्चर्स रखी हैं। अगेन मैंने ये इसलिए आपको बता दिया कि तरीका क्या होगा पढ़ने का। मेरे पास अभी बीडी चौरासिया अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने उस चीज़ को इतना अच्छे से ऐड नहीं किया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को आपके सीनियर से किसी भी तरह कांटेक्ट करवा के आपको वो जो हमारे पास बुक है, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूं, जिसमें सारी पास्ट पेपर्स की ऑस्पीज मौजूद है। ठीक है, तो अभी आप लोग क्वेश्चंस करें जो भी है, तो इंशाल्लाह मैं आप 7 स्टार इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो मैं दे रही हूँ उसे, जस्ट अ थिंग के देखो हम कहते हैं ना इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो 7 स्टार इज द थिंग कि यार बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 में थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरह से ये कैटेगराइज कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है। एवरीथिंग इज यस, आपको शुरू में लगेगा कि चीज़ें बहुत सिमिलर हैं, लेकिन जैसे जैसे आप चीज़ों को कवर करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत पहले एफएम में तो सारा रटना पड़ेगा, पिक्चर्स को मेमोराइज करो। जो जब आप एंड में आएंगे ना फर्स्ट ईयर के, तो आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। यस, थैंक यू तहरीम क्लियर करने के लिए। हिस्टो बुक सजेशन फॉर डायग्राम, हिस्टो की बुक के लिए कोई डायग्राम कोई और बुक यूज मत करना, सिर्फ और सिर्फ लाइक हुसैन की एक एक पिक्चर को बिल्कुल वो कहते हैं मेमोराइज कर लो, फोटोग्राफी कर लो। ठीक है, माइक्रोस्कोप में पिक्स नहीं समझ आती, कोई मसला नहीं, आपको माइक्रोस्कोप की हैंडलिंग आनी चाहिए, दैट्स इट। आपके पेपर में एक जैसे ग्लोसी पेपर होता है ना, ग्लोसी पेपर की शीट पे आपके लाइक हुसैन की पिक्चर जो है वो लग के आपके सामने चिपकाई होगी, और आपसे पूछेंगे बताएं क्या है, आपको पिक्चर पे दिखा के बताना होगा। ठीक है, बाकी माइक्रोस्कोप में आपको एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि स्टेन कौन सा यूज हुआ हुआ है, और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है टाइप ऑफ स्टेनिंग पता होनी चाहिए। थ्योरी देखो, थ्योरी के क्वेश्चन आप ना आगे वाले उनसे पूछिएगा जरूर, आपके पास अलग सब्जेक्ट वाइज है। मैं पीडीएफ आपके पास शेयर करवा दूंगी, डोंट वरी। पीडीएफ पूरी की पूरी आपकी केलम से बनी हुई है, और आपकी उससे हिस्ट्री की जो बुक है लाइक हुसैन वहां से बनी हुई है, विच बायोकेम आपके हर सब्जेक्ट वाइज अलग गाइडेंस होगी। ओके, अगर ऑस्पी के हवाले से आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ लो, आपको हर सब्जेक्ट की बुक का बताएंगे। अच्छा, मैं अभी कर दूं यहाँ पे, हो यहाँ पे जूम पे हो जाएगा शेयर। यस, इसेंशियल ऑस्पीज, थैंक यू सो मच अरीबा कि आपने मुझे ये बताया। उस बुक का नाम है इसेंशियल ऑस्पीज, जिसमें सारे पास्ट पेपर की ऑस्पीज हैं। पास्ट पेपर से बहुत आएगा वाइवा, आयशा पास्ट पेपर को बस रट लेना।
एसेंशियल है, एसेंशियल के ऑस्पीज में मिल जाएगा। पीडीएफ्स ले लेना, डोंट नीड हैव टू बाय द बुक्स ऑफ ऑस्पीज। आप उससे भी कर सकते हो पीडीएफ। 5 पेपर के लिए सिर्फ एसेंशियल वाले यूज कर ले। देखो सिर्फ वो काफी नहीं है, वो तो सारी करनी ही है। उसके अलावा जो आप ऐसे देखो, जब आप किसी भी पिक्चर को देखोगे बुक में डायग्राम, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है कि इसके नाम हाइड हो सकते हैं, तो वो सारे डायग्राम को इंपॉर्टेंट लेबल कर लो। ओके, चलिए ठीक है, फिर बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी आफ्टर बाकियों के सेशन के उनके आंसर मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह मैं आपकी ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू मुनीब, इट्स अप टू यू नाउ। आई एम थैंक यू सो स्टॉपिंग। मच आयशा बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों को गाइड करने के लिए। जितनी ऑस्पीज बताई गई हैं आपको आयशा बाजी की जानिब से, वो सब की सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ मैं एक बात का इजाफा कर दूं कि एक बुक का बताया आयशा बाजी ने, जो हम सब ने यूज की थी, एसेंशियल बुक, जिसमें सारी की सारी ऑस्पीज आपको 5 रुपए की मिल रही होती हैं। तो टीम मैडीज ने ना सिर्फ वो, बल्कि जितनी भी 5 रुपए की ऑस्पीज है वो एक ही पीडीएफ में कंपाइल कर दी है, सॉल्व फॉर्म में। हम आपको इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में एक पीडीएफ देने जा रहे हैं, कंपाइल्ड पीडीएफ है। उसमें जितनी ऑस्पीज हैं जो आ सकती हैं प्रॉफ के अंदर, आपके फाउंडेशन मॉड्यूल से या फिर आपके किसी बल्कि आपके पूरे प्रॉफ से क्यों नहीं, तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें सारी ऑस्पीज सॉल्व है, चाहे वो ऑब्जर्व हो चाहे वो अनऑब्जर्व हो। इसी के साथ मैं अगले सब्जेक्ट यानी कि फिजियोलॉजी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीकर को बुलाने जा रहा हूँ। फिजियो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसकी वजह यह है, अगर आपको आगे मेडिसिन में जाना है यानी कि आपको फिजिशियन बनना है, तो आपकी फिजियो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फिजियो के लिए गाइड करने के लिए आपको आ रहे हैं उबैदुर रहमान, KMU फोर्थ ईयर से, KMDC फोर्थ ईयर से। अप टू यू उबैद। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? Am I audible to you? Kindly respond. Okay, okay. That's nice. That's nice. आप लोग काफी एक्टिव हैं माशाल्लाह. So let's start. Uh, First of all, let me clarify one thing. My friend Munib has written word motivator on the post with my name. That's actually wrong. I'm not a motivator. Basically, I am a demotivator. Okay. Why do I say this? Because actually I hate the reality. मैं सच्ची बातें बताता हूँ जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर वही लोग आगे जा सकते हैं जो डिसिप्लिन को मोटिवेशन पर फोकस देते हैं। बेसिकली मेरी उर्दू थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो मेरी कोशिश होगी कि या मैं इंग्लिश में बात कर लूँ या मैं आसान उर्दू में बात करूँ। ठीक है, सो लेट्स बिगिन. If you people can understand the poetry, then I can start, because I do not have much time and I have to cover lots of things. Okay. So first of all, let me tell you one thing. Guys, आपको आज तक जो कुछ भी बताया गया है वो सब झूठ है। हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो लेट मी शेयर अ पीस ऑफ पोएट्री विद यू पीपल, दैट कहानी जो तुमको सुनाई गई है, कहानी जो तुमको दिखाई गई है, कहानी जो तुमको दिखाई गई है, जो लोरी में तुमको सुनाई गई है, खुदा की कसम ये कहानी नहीं है। तुम्हें बेतहाशा तमाशा दिखाकर कहानी को तुमसे छुपाया गया है। कहानी तो लोगो तुम्हारा लहू है, जिसे रात में बंद कमरों के अंदर, निजी महफिलों में सुराही के अंदर, चुड़ैलों को भर भर के पिलाया गया है। कहानी को तुमसे छुपाया गया है। मैनी ऑफ यू माइट बी सेइंग, यार उबैद भाई ये क्या बात कर रहे हो, हमने इतनी मुश्किल से एडमिशन लिया और आप ये सारी बातें कर रहे हो हमारे सामने। बेसिकली एक बहुत बड़ा बिजनेस माफिया है, दैट इज एमडी कैट का माफिया, जो आपको बहुत सारी चीजें ग्लोरीफाई करके दिखाता है और आपको कुछ वो चीजें दिखा देता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डिल्यूजनल वर्ल्ड में आपको फॉल्स फैंटेसीज में लेकर चला जाता है। कभी आप डिबेटिंग मुझसे सीखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ दे पीपल प्ले विद योर ब्रेन्स, और फिर जब आप न्यूरो पढ़ोगे तो ये जब आप फार्मा पढ़ोगे तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में मजीद पता चलेगा। तो मेडिसिन का जो प्रोफेशन है ये इतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को करके दिखाया गया है, और इतना इसमें वो सब चीज़ें
आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी आइडिया होगा, मतलब जो कुछ भी आपको दिखाया गया हकीकत उससे बिल्कुल बरअक्स है। और 5 साल बाद गुजारने के बाद यू पीपल विल कम टू नो अबाउट द फैक्ट व्हेन द रियलिटी विल हिट यू इन अ वेरी डिफरेंट वे, लाइक स्लैप्स ऑन द माउथ। आपको पता चलेगा यार ये सब कुछ तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। सो चूंकि मेरा टॉपिक अभी एम्ब्रॉयलॉजी है, तो ये सारी जो तमहीद मैंने आप लोगों के सामने बांधी है, तमहीद का मतलब ये होता है कि वो डिस्कशन जिसे प्री डिस्कशन कह सकते हैं, बिफोर द फाइनल डिस्कशन, कि मैं जिस डायरेक्शन पर आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो डायरेक्शन उस तमाम तर जो बबल क्रिएट किया गया उससे बिल्कुल अलग है, तो आप लोगों को उससे उसको एब्जॉर्ब करने में, डाइजेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है, इज इट क्लियर? आर यू पीपल रेडी? आर यू पीपल रेडी टू सी सम actual realities? So let's begin, okay? Point is that एम्ब्रोयोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारे लोग ये बोलते होंगे यार थोड़ा सा चंक आता है, एनेटमी का एक छोटा सा हिस्सा होता है, इतना कुछ होता है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। या हर वो बंदा जो आपको पेपर ओरिएंटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रहा है, यार मैं उसके खिलाफ हूँ, सीधी सी बात है। ठीक है, आप लोग सब मेरे बहन भाई, छोटे दोस्त, कुछ भी कह लो, मैं उस अप्रोच के खिलाफ हूँ। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि इस अप्रोच की वजह से पाकिस्तान डॉक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान में कितने डॉक्टर्स हैं जिनके नाम आपको फिंगर टिप्स पे याद है, या मैं नाम लूं तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार ये वो बंदा है, सिवाय चंद टिकटॉकर डॉक्टर्स के। वो भी कोई इतने बड़े प्रोफेशनल नहीं है। उनका ड्यू टू एनी हाउ जो पाकिस्तान में एक ट्रेंड होता है, वायरल कोई भी हो जाता है तो फिर वो चलो उन्होंने अपना अपना मेंटेन किया, अच्छी बात है, अप्रिशिएट इट। लेकिन पाकिस्तान कोई बहुत ज्यादा डॉक्टर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, राइट? तो उसकी वजह ये है कि हम पेपर ओरिएंटेड पढ़ते हैं। तो क्योंकि आज मेरे लिसनर्स के अंदर केएमडीसियंस भी हैं, डॉइट्स भी हैं, और जो है जेएसएमयू वाले भी हैं, तो लेट्स बिगिन विद द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ एम्ब्रोयोलॉजी, that embryology is not just a normal study। भाई एम्ब्रॉयलॉजी कोई छोटी चीज नहीं है। एम्ब्रॉयलॉजी को अगर मैं एक छोटी सी स्टेटमेंट में आप लोगों के सामने रखूं ना, बेसिकली एम्ब्रॉयलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, ना स्टडी ऑफ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, एंड द वेरी बेसिक और इम्पोर्टेंट, या जो असास है बुनियादी, जिस पर हमारा सबसे बड़ा फड्डा चल रहा है किसी भी एंटी इस्लामिक शख्स के साथ, जो एथियस्ट है चाहे वो मुल्हिद है, वो सबसे पहला सवाल ही हमारे साथ ये करता है कि हमारा वजूद कहाँ से आया। तो एम्ब्रॉयलॉजी आपको उस चीज के बारे में बताती है। ठीक है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ, राइट? तो इट्स द वेरी पॉइंट, लिसन टू मी केयरफुली गाइस, इट्स द वेरी पॉइंट where science meets faith. So to me, embryology is the very easy way to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, because when you read the embryology, when you understand the science and then you read the Quran, what happens is आपको पता चलता है कि यार साइंस जिसको हमारा दिमाग रेशनल बुनियादों के ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है वो तो बिल्कुल कुरान के अकॉर्डिंग है। तो कुरान पे आपका फेथ स्ट्रांगर होगा, और फिर जब आप उस वे में एम्ब्रॉयलॉजी को पढ़ोगे जिस वे में एम्ब्रॉयलॉजी को पढ़ने का हक है, तो कल को अगर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको कोई शख्स आपके रिलीजन के अगेंस्ट बात करता हुआ नजर आएगा, या आपके फेथ के अगेंस्ट बात करता हुआ नजर आएगा, तो यू पीपल विल नॉट बी लाइक यार ये तो हमारे काम की बात नहीं है। फिर आप में खुद कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को पढ़ा हुआ है, यानी आपके घर में किताबें पढ़ी हुई नहीं, आपने पढ़ी हुई है। तो ये जो केएलएम है, ये जो बुक्स हैं, आपको पता है सर केएलएम के बारे में किसी को कुछ पता है? चलो सर केएलएम के बारे में फिर कभी बताएंगे, अभी एम्ब्रॉयलॉजी की गाइडेंस के ऊपर आते हैं। ये छोटी सी तमहीद थी। तो अल्लाह, व्हाट अल्लाह सेज इन कुरान, लाइक कुरान हमारे जहन में होना चाहिए ना, बीइंग अ मुस्लिम्स, राइट? एक बेसिक हमारे पास तो सोर्स ऑफ नॉलेज कुरान ही है। तो व्हाट अल्लाह सेज इन कुरान, अल्लाह सेज इन कुरान दैट वी क्रिएटेड men फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ मिक्स्ड फ्लूइड। अब ये बात समझ में आ गई? कोई आकर हमें कहे, चलो टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा, कम टू द पॉइंट। Allah also says in Quran that He creates you in the womb of your mother, creation after creation in threefold darkness। अब ये थ्री फोल्ड डार्कनेस की लाइन पढ़कर कितने साइंटिस्ट मुसलमान हो गए?
अब जब आप प्लासेंटा की फॉर्मेशन पढ़ रहे होगे और सारी डिटेल्स पढ़ रहे होगे तो वहां पर आप देखोगे कि यार अल्लाह ने 1400 साल पहले या लाखों करोड़ों साल पहले कुरान में एक बात हमें बता दी और साइंस उसको आज प्रूव कर रही है। इस तरह की मल्टीपल चीजें हैं जो आपको एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मिलेंगी। और इट्स नॉट ओनली फॉर द मुस्लिम्स, इट्स फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु थिंक्स, हु इज अ रैशनल थिंकर। इट्स फॉर एवरी सिंगल रेशनल अप्रोच पर्सन हैविंग रेशनल अप्रोच, ये उसके लिए है। एम्ब्रॉयलॉजी को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रॉयलॉजी को पढ़ना कहाँ से है। और फॉर द वेरी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के, मैं जेएसएमयू के स्टूडेंट्स को भी जानता हूँ, केएमयू वालों को भी जानता हूँ, पढ़ाया भी है मैंने, मुझे आइडिया है कि क्या आता है पेपर्स के अंदर, तो वो भी मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा, राइट। और उसके बाद अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, कंप्लीट फ्री टू आस्क, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि एम्ब्रॉयलॉजी के अंदर आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है कि ये आपको आपको बुनियादी तौर पर मजबूत करने के लिए सब्जेक्ट है। क्योंकि एम्ब्रॉयलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग होगी ना, तो कल को आप किसी भी स्पेशलिटी के बारे में स्टडी कर रहे होगे, आपकी पीछे की बुनियाद इतनी स्ट्रांग होगी, आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाओगे। और जिनकी एम्ब्रॉयलॉजी मैंने देखा है वीक होती है, और बहुत सारे बच्चों की वीक होती है, तो वो पेपर ओरिएंटेड अप्रोच से नंबर तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आगे का मरहला आता है ना, जहाँ पे आपको फिल्टर किया जाता है, वहां पे वो फंस जाते हैं। फिल्टर क्या होता है फिर कभी किसी मीटिंग, कभी किसी डिस्कशन में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम कि आपके पास जो एम्ब्रॉयलॉजी है, इसके अंदर बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो आपको इतना सिंप्लीफाई करके चीज को पढ़ा देते हैं, इतना सिंप्लीफाई करके चीज को पढ़ा देते हैं कि आप इजीली इजीली वो माइंड मैप क्रिएट कर लेते हो अपने जहन के अंदर के, सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। और फॉर फॉर द सेक ऑफ लाइक जिस डिस्कशन में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, कि आपके पास जो छोटी सी छोटी बुक है ना, शर्जील है, सब बच्चे शर्जील को पढ़ते हैं। यार मैं आप लोगों को अभी नहीं कहूंगा, ये आप लोगों का टाइम नहीं है शर्जील पढ़ने का, शर्जील आप लोग एंड में पढ़ना। मैं मना नहीं कर रहा, शर्जील से ही पेपर पास होता है, नो डाउट। लेकिन अभी चूंकि मैं आप लोगों को पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, तो पढ़ने के लिए आपने शर्जील को नहीं पढ़ना। वट आई रिकमेंड यू गाइज इज कि देखो, अ हनी फॉर मी कैन बी अ पॉइजन फॉर यू, एंड अ पॉइजन फॉर मी कैन बी अ हनी फॉर यू। इट्स यू हु गोना डिसाइड कि what works for you, and whatever works for you it works for you। जो चीज आपके लिए काम करती है वो किसी और के लिए नहीं करती, तो ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात मैं 5 चैनल्स के नाम बताऊंगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स। दूसरा, आप निंजा नेट को भी देख सकते हैं, ये नाम लिख लें, आप लोगों को काम आएगा। तीसरा, खान एकेडमी, मतलब अच्छा है, मैंने उनसे नहीं पढ़ा। अच्छा, एक और है कि उसका नाम है ग्रीकी मेडिकोस। ग्रीकी मेडिकोस जो है आपको एग्जामिनेशन के बारे में बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन इसको भी थोड़ा सही से पढ़ाया हुआ है, मैंने इससे नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने पढ़ा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक चैनल है जिसका नाम है अरमेंडो, ARMANDO, अरमेंडो, HASUDUNGAN। मुझे खुद इसको प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो मैं भी इसको अरमेंडो ही बोलता हूँ, आप लोग भी इसको अरमेंडो लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ चैनल थे जो मैंने आप लोगों के सामने रखे। इसके साथ इंटरेक्टिव बायोलॉजी भी एक चैनल है। इन तमाम चैनल्स को आपने देखना है, और इन तमाम की आपने एक एक वीडियो देख लेनी है, ठीक है। ऑस्मोसिस की भी आप देख सकते हैं, एक एक वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। दिस मेथड विल लेट यू नो कि विच फ्रीक्वेंसी मैच योर फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई जो यूट्यूब चैनल पर या जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो आपको चीजें समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। कमिंग बैक टू द बुक्स, देखो सिंपल सी बात है, जेएसएमयू के अंदर बहुत सुपरफिशियल पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने परेशान नहीं होना। एक जो नॉर्मल गाइडलाइंस है वो यही है कि बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आप शर्जील कर लें, आपका हो जाएगा। सेम गोज फॉर केएमयू के स्टूडेंट्स। अच्छा, केएमयू के स्टूडेंट्स की खिदमत में गुजारिश है कि आजकल हमारे एनाटॉमी डिपार्टमेंट वालों को पता नहीं क्या हो गया है, उन्होंने कुछ डीप चीजें जो कि आज से पहले कभी नहीं पूछी गई थी, मिसाल के तौर पे क्रोमोसोम्स की डिटेल्स इतनी ज्यादा लास्ट एग्जाम में पूछी गई है, मैं खुद हैरान था। बच्चे मेरे पास आके बोले, तो बैद भाई ये क्या हो गया, आपने तो कहा था इतना डिटेल में नहीं पूछते। तो कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो आपने अपने आप को प्रिपेयर रखना है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके लिए शर्जील इंतहाई बेस्ट बुक है, ठीक है। आप लैंगमैन फॉलो कीजिएगा चार्ट्स के लिए, पिक्चर्स के लिए, और पिक्टोरियल डायग्राम्स आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी मिल जाएंगी। कोशिश कीजिए वो चैनल्स देखें जो हाथ से इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं, आपको पूरा का पूरा माइंड मैप बनेगा, पहले क्या बना, फिर क्या बना, फिर क्या बना, इस तरह चीजें आपके माइंड में रह जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ केएमयू एंड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जेएसएम एंड फॉर एवरी सिंगल, कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, डजेंट मैटर। आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं
वो डिटेल्स नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि आपको हॉस्पिटल में क्या चीज काम आएगी। एक दफा आपने एम्ब्रॉय को पढ़ना जरूर अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन अंडरस्टैंड करने के बाद जिस चीज का रट्टा लगाना है, जिस चीज को अच्छे से अपने रिफ्लेक्सेस का हिस्सा बना लेना है, वो आपकी बेसिक क्लिनिकल्स हैं। और क्लिनिकल्स के बहुत अच्छे से आपको शर्जील के अंदर मिल जाएंगी डिटेल्स। जितनी डिटेल वहां लिखी हुई है मोर देन इनफ है, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि जो भी क्लिनिकल आप देखें उसको एक दफा गूगल कर लें, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स, पिक्टोरियल डायग्राम्स आपको जरा एचडी में अच्छे वे में नजर आ जाएंगी। इस तरह चीजें आपके जहन में रह जाएंगी। और होगा ये कि फिर आने वाले वक्तों में जितनी भी जेनेटिक्स की डिजीजेज हैं, जितनी भी कोई कॉन्जेनाइटल या कोई इस टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, वो आप अंडरस्टैंड करने में आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो लेट्स कंक्लूड द डिस्कशन। पहला पॉइंट, आपने एम्ब्रोयोलॉजी को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी मेडिसिन की बुक को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग के डेज में आपने अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। और याद रखना, नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक वो बंदा जिसके पास सिर्फ किसी चीज का डेटाबेस नॉलेज है, वो सिर्फ नॉलेज है, लेकिन वो बंदा जो उस नॉलेज को इंप्लीमेंट कर सकता है, उसे इंफॉर्मेशन नहीं नॉलेज कहेंगे, उसे इल्म कहेंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन वो है जिसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, नॉलेज वो है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो बीइंग अ डॉक्टर, आप कुछ भी पढ़ोगे वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस इंप्लीमेंटेशन को जहन में रखते हुए आपने पढ़ना है। दूसरी चीज, क्लिनिकल्स को फोकस कीजिएगा। तीसरी चीज, जो चैनल्स मैंने बताए एक एक दफा काइंडली जाकर उन चैनल्स को गो थ्रू कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों में से किसी को बहुत ज्यादा अच्छे से वो चैनल समझ में आ जाए। और अगर कोई पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक स्केचिंग वाला बच्चा नहीं है, बुकिश बच्चा है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा और परफेक्ट आइडियल एक स्टेट होती है स्टूडेंट के लिए, जिसको बुक से प्यार है, जिसको बुक की बातें समझ में आने लग जाए, जिसकी बुक से दोस्ती अच्छी हो जाए, वो प्रोफेशन में बहुत ज्यादा आगे जाता है, उसको आसानी होती है पढ़ने में, वो बहुत अच्छे से रिटेन कर पाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, टाइम की कमी है। बातें तो बहुत सी हैं करने को, एम्ब्रॉयलॉजी के हिसाब से भी है, कोई केस डिस्कशन में आप लोगों के साथ कर लेता, कुछ आपको मैं पढ़ा देता कि पढ़ना कैसे होता है, अप्रोच बता देता, मेरी अप्रोच कैसे थी, बेड पे अप्रोच, बेड साइड पे अप्रोच कैसी होती है, कन्वर्जेशन, सारी बातें मैं आपको बता देता। इनशाला ये सब बातें हमारी किसी नेक्स्ट मीटिंग में होंगी, किसी नेक्स्ट मुलाकात में होंगी। अब तक के लिए जितने लोगों ने मुझे ध्यान से सुना उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने थोड़ा सा कम ध्यान से सुना, वक्त उन्हें मजबूर करेगा इस बात पर कि वो आने वाले वक्तों में अपनी इस रीत को चेंज करें। अदरवाइज यू विल नॉट, you will not only be left behind but you will be no more in the future। आपका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है। सो पे सम अटेंशन प्लीज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज गाइस। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे उबैदुर रहमान। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि जेएसएमयू एग्जाम के लिए एम्ब्रियोलॉजी का जो पोर्शन है उसके लिए यूट्यूब चैनल है MBS मेडी लेक्चर। तो अगर आप के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और जेएसएमयू कभी भी आपको पूरा साल नहीं देता पढ़ने के लिए, जेएसएमयू आपको 6 से 7 महीने देता है पूरे साल के लिए। तो जेएसएमयू का साल बेसिकली 12 महीने नहीं, वो 6 महीने है। तो आपको 6 महीनों में एमब्रियो भी कवर करनी है, ना सिर्फ एमब्रियो बल्कि आपको सारे के सारे ही सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। तो MBS मेडी लेक्चर नामी एक यूट्यूब चैनल है कि जो आपको बहुत छोटी वीडियोस में उतनी एमब्रियो पढ़ाता है कि जितनी आपको आनी चाहिए अपने एग्जाम्स के लिए। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले स्पीकर की जानिब जो JMDC से हैं। आप CR हैं इस वक्त, सेकेंड ईयर के, और अभी फ्रेश आपने फर्स्ट ईयर पास किया है, तो आपको ज्यादा बेहतर बता पाएंगे फिजियोलॉजी के हवाले से कि आपने फिजियो कहाँ से पढ़नी है, किस तरह पढ़नी है। तो हमारे अगले स्पीकर ताहा रहमान JMDC से। ओवर टू यू ताहा। थैंक यू मुनीब। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? मुझे ज़रा चैट में बता दें। मेरी आवाज़ आ रही है, क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू। चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट लेक्चर से। ओके, आप लोगों को पीपीटी दिख रही है? डन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सो पहले इंट्रोडक्शन मेरा थोड़ा सा। मैं JMDC का सेकेंड ईयर का CR हूँ और फिजियो का आज मुझे गाइडेंस के लिए बुलाया गया मेडिस से। तो चलिए हम पहले स्लाइड देख लेते हैं। ओके, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले जो बुक्स जो हैं ज़्यादातर जो कॉमन आपको वो दिए जाते हैं रेफरेंस, वो है गाइटन एंड हॉल। वो फिजियो की मेजर बुक है, लेकिन उसका फाउंडेशन में ना अभी टाइम कम होगा। पेपर आप लोगों के होंगे फॉरेन, तो टाइम कम होगा, कवर होना गाइटन मुश्किल है सारे टॉपिक फाउंडेशन के।
तो इसके लिए एक बेसिक जो बुक यूज होती है ना वो फिरदौस है। और फिरदौस के जो लेक्चर होंगे, जो शॉर्ट टर्म लेक्चर होंगे जो फिरदौस को एक्सप्लेन कर देंगे वन शॉट में, वो मैडीज यहाँ पे अपलोड भी करेगा, आप लोगों को लिंक शेयर कर दी जाएगी जो मैडीज के जितने भी वो लेक्चर्स होंगे उसकी, सही है। और ज्यादातर फिरदौस ही यूज होती है बिफोर एग्जाम, क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल्स ना बेसिक जो जितनी भी होती हैं फाउंडेशन के हवाले से, और जितनी भी फिजियो की डिटेल्स होती हैं वो सारी कवर हो जाती है मैं ये फिरदौस से। ज्यादा आपको गाइडेन में अगर डिटेल पढ़ने का टाइम हो ना, क्योंकि आपको बनना डॉक्टर है, डॉक्टर बनने के लिए कंसाइज तो पढ़ेंगे नहीं कि ये पढ़ा था बाद में जाके बोलेंगे मैं तो ये पढ़ा था, ये था नहीं उसके अंदर सिलेबस के अंदर। तो इसीलिए गाइडेन का टाइम मिले तो पढ़ लेना अभी, क्योंकि एंड में ईयर में 3 महीने का गैप आता है, उस महीने में आप लोग गाइडेन भी कवर कर लेंगे। जो भी अभी बेसिक जो चल रहा है ना, जिस हिसाब से रूटीन होती है, यूनिवर्सिटी से आके टाइम कम मिलता है, उस हिसाब से ही आप बुक सेलेक्ट करें, या जो भी आपके रिसोर्सेज हैं वो सिलेक्ट करें, उस हिसाब से स्टडी करें। तो फिजियो के लिए फिरदौस बेस्ट है, फॉर जितने भी सारे टॉपिक सब कवर करेगी शॉर्ट कंसाइज वे में। और इसके अंदर जो हम लोग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल्स जो है ना, जो अभी आजकल यूज हो रहे हैं, जो अभी मैंने अभी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया था, तो उसके अंदर जो मैंने यूज किए थे बेसिक चैनल्स, वो मेडिकल गेटवे, उसके अंदर उसने गाइडेंस सब एक्सप्लेन कर दिया। और टाइम कम हो तो उसको आप लोग, वो जरा स्लो बोलता है, तो आप लोग 2x पे भी देख सकते हैं, ये एज अ पर्सनल एडवाइस है। वो 2x पे भी आप देखेंगे तो सब समझ में आ जाएगा इसमें से। मेडिकल गेट में दूसरा निंजा नेट है, निंजा नेट में बहुत ज्यादा टॉपिक जो एक्सटेंसिव वे में कवर होता है, उसके लेक्चर्स भी लेंदी होते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि जिसके पास ज्यादा टाइम है, जिसने सब कुछ कर लिया है, वो इसको यूटिलाइज करे, बेसिक पे रहेगा। अगर जिसने स्टार्ट ही अभी किया है, उसने सब कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो बेसिक पे ही रहे, वो करे मेडिकल गेटवे यूज यहाँ पे। और दूसरा है मेडिकल मेडी लेक्चर्स, वो तो बता ही दिया मुनीब भाई ने कि वो भी एक अच्छा है। जिसको गाइडेंस करनी है और वहां पे दिखाना है कि वहां पे वाइवा में बैठोगे ना, सामने से पता चल जाएगा ओएसपी में बैठोगे कि ये पढ़ के कहाँ से आया है, तो वो टीचर्स खुद बोलेंगे कि ये गाइडेंस से पढ़ के आए हो। अगर आप यहाँ पे मेडिकल गेटवे गेटवे के लेक्चर सुन लिया ना, तो वो लोग बोलेंगे कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जो बाकी में नहीं मिलेंगे, जो गाइडेंस में होता है, वो मेडिकल गेटवे कवर कर देता है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अगला है बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स और ये ट्रांसपोर्ट और सेल सिग्नलिंग। ऑस्पी जो बेसिक होती है ना, फाउंडेशन में से ज्यादा ऑस्पी जर्नल में से आती है, जो आप लोगों की जर्नल होगी अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज की, उस जर्नल में से ज्यादातर ऑस्पी आती है। जितनी भी वाइवा वाली, मतलब ऑस्पी अनऑब्जर्व्ड और ऑब्जर्व दोनों ज्यादातर जर्नल में से आती है, ये हमने एक्सपीरियंस किया अभी। और ये बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स और सेल सिग्नलिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रॉफ के लिए भी, प्री प्रॉफ के लिए भी, और फाउंडेशन के मॉड्यूलर टेस्ट के लिए भी। ये मैंने एक ऐड कर लिया था कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं ना जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये समझ लें वही है। और ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, इन सब के जो स्लाइड्स हैं और जितने भी इसकी डायग्राम्स वगैरह हैं, वो सब अवेलेबल होंगे। हम आपको रिसोर्सेज पूरे शेयर करेंगे। वो मेडीज ना सब कंपाइल करके एक जगह रखता है, पास पेपर्स के जितने भी होते हैं, हिस्टो के जितने भी पुराने वाले होंगे। हिस्टो की स्लाइड्स अभी पूछ रहे थे पिछले आयशा बाजी के लेक्चर में कि कौन कौन से हिस्टो की, वो हमें कैसे पता चलेगा माइक्रोस्कोप में कैसे दिखता है। तो माइक्रोस्कोप में कैसा दिखता है ना, ये भी कैमरा से कैप्चर करके एक स्लाइड्स के फॉर्म में वो तैयार किया हुआ है। वो सब भी आपसे शेयर कर दिया जाएगा कि वो माइक्रोस्कोप की पिक्चर आएगी और माइक्रोस्कोप में लगा हुआ होगा तो वो कैसे दिखेगा। ये सब भी आपको शेयर होगा। वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होता कि कहाँ से आ गया, ये इस तरीके का चीज़ नहीं होती, सब पता होता है पहले से कि ये आएगा यहाँ से आएगा, अंदाजा होता है पहले से। और जितने भी वहाँ पे पेपर चल रहे होते हैं, सारे के सारे लग ही जाते हैं, मतलब 70 to 80% पास पेपर में से। और जो 10% लगते हैं वो सिमिलर होते हैं पास पेपर में। चलो, बस बेसिक फिजियो का यही था। अब बाकी जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछ ले स्पेसिफिक, मैं उसको उसी के हिसाब से आंसर कर देता हूँ। चैनल नेम मैं दोबारा बता देता हूँ, मेडिकल गेटवे है फिजियो के लिए, मेडिकल गेटवे बेस्ट है। और जो अभी आपको बता रहे थे एम्ब्रियो के लिए, उसके लिए भी एक बेस्ट है जो शॉर्ट है। एक है डॉक्टर आसिफ कुरैशी, वो दोनों बुक्स ना रीड करके सुनाते हैं। जैसे फिजियो की हो गई गाइटेन एंड हॉल, वो पूरी वो रीड करेंगे। फिर उसकी बीडी चौरसिया हो गई, वो भी वो पूरी रीड करेंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं ना जो विजुअल लर्नर्स होते हैं, जो डाइवर्ट हो जाते हैं बुक्स रीड करते हुए, कि इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए बेस्ट जो है ना, वो डॉक्टर आसिफ कुरैशी की वीडियो देखें। वो हमारे सामने बैठ के पूरी बुक रीड करेंगे, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि डाइवर्ट नहीं होंगे, उससे अटेंशन स्पेन हमारा उसी पे रहेगा। और वो होती लेंदी है, तो टाइम जिसके पास हो, टाइम इंपॉर्टेंट है। हर चीज की ना टाइम के हिसाब से दो वीडियोस होती हैं, जैसे एम्ब्रियो के अंदर दो हैं। एक है ब्रिलेस मेडिकोस, वो आपको लाइन से स्टार्ट से देखना शुरू करो, आधे 1 घंटे में सारे हो जाएंगे लेक्चर। वो पेपर पे लिख के समझाती हैं, आधे घंटे में आपके सारे लेक्चर्स हो जाएंगे। ये डन हो गया शॉर्ट फॉर्म में।
फिर शॉर्ट फॉर्म में पहले सारे हो जाएंगे ना, सारे सब्जेक्ट कवर, उसके बाद लॉन्ग फॉर्म में टाइम बचा तो फिर लॉन्ग में कर लेना, जितने भी डिटेल में पढ़ना हो फिर। अच्छा, जो पीडीएफ्स है मैं बता रहा हूँ ना अभी, मेडिस ना पूरा एक कंपाइल करके इसको सॉर्ट करके हर चीज को, जितने भी बीसीक्यूज आएंगे पास पेपर के बीसीक्यूज, क्रैक जो अभी बताई थी बुक, क्रैक के अंदर आंसर्स गलत होते हैं, तो बीसीक्यू आंसर अगर आप पढ़ के ही गलत जाओगे तो पेपर में तो गलत होंगे ही। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी फिर। इसीलिए क्रैक के आंसर्स करेक्ट वाले, क्योंकि हम लोग पिछले साल ढूंढ रहे थे, मिला नहीं था हमें क्रैक का कोई सॉल्व करेक्ट सॉल्व पेपर। तो वो वाले सॉल्व पेपर्स जितने भी हैं वो सब मेडिस ने कंपाइल करके एक जगह कर लिए, और फिरदौस का वन शॉट लेक्चर कैप्चर करके वो भी वहीं पे कंपाइल कर दिया, और जितने भी ऑस्पीज जो अभी 7 स्टार वाली दिखाई हैं वो भी उनसे लेके सब कैप्चर करके वहां पे एक जगह पे कंपाइल करके एक पूरी पीडीएफ फॉर्म बना दिए। जैसे अभी एमडी कैट जो जो देख रहा है उसने एक्सपीरियंस किया होगा प्री मेड को, उस तरीके की यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज में भी रिक्वायर्ड होती है कोई वेबसाइट जो हमारे लिए ये सारा अरेंज कर सके, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत होती हैं, यूटिलाइज करना आना चाहिए, क्योंकि तैयारी आखिरी के 1 हफ्ते में भी हो जाती है सारी, अगर आपके पास रिसोर्सेज हो, आपको प्रिपेयर हो मेंटली कि कहाँ से क्या करना है। और डॉक्टर आसिफ कुरैशी, इनके लेक्चर्स ये रीड करते हैं बुक, क्योंकि जिसको बुक का फोकस हट जाएगा वो उसको ये कोई रीड करके सुना दे उसके लिए बेटर है। और कोई सवाल है? हाँ, पहले शॉर्ट लेक्चर्स लो ताकि तुम्हारी सारी टॉपिक्स कवर हो, वरना एंड में परेशान हो रहे हो कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा ना हो ना कि सब पढ़ा हुआ है, ये ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये फायदा होगा तुम्हारा। वहां पे कुछ भी थोड़ा बहुत भी बताओगे ना तो मार्क्स तो मिलेंगे। शॉर्ट लेक्चर एम्ब्रियो के अंदर शॉर्ट लेक्चर के चैनल का नाम है वो ब्रेनलेस मेडिकोस। फिजियो के शॉर्ट लेक्चर्स के चैनल का नाम है मेडिकल गेटवे। और एनाटॉमी की शॉर्ट लेक्चर्स का नाम है जौहरी। वो ये तीनों, और एक और अनॉटमी के अंदर जो सबसे बेस्ट जो एक्सप्लेन करता है ना, जो उसके लेक्चर्स लेंदी होते हैं थोड़े, लेकिन वो बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि उससे ना रिटेन ज्यादा हो रहा है। अनॉटमी में मसला ये होता है पहले पढ़ लिया उसके बाद भूल जाओगे बाद में, तो उसके अंदर अनॉटमी में अगर रिटेन करना है ना तो अभी एक आया है नया, जो हम लोगों ने यूटिलाइज किया था, हम लोग सेकेंड ईयर वालों ने, बजरंग वाला। बजरंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल आया है, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, यहाँ तक कि लोकोमोटर मॉड्यूल में ना मसल्स याद रखना बहुत मुश्किल है, मतलब मैंने 4 दफा पढ़े थे। मैं फिर से बार बार उसको, मतलब मैं बोन्स लेके पढ़ा था, सब कुछ करके पढ़ा था, सब जितने भी टिप्स बता रहे हैं ना उससे याद नहीं रहता, रिटेन नहीं रहता। फिर एंड में मैंने बजरंग की वीडियोस देखी थी तो वो पूरी रिटेन, अभी भी मुझसे मसल कोई पूछेगा मैं ऐसे ही 1 सेकंड में बता दूंगा कि ये मसल कहाँ पे होता है, कि उसके एक्शंस भी जब विजुअली याद होता है ना कि कौन सा कहाँ पे लगा हुआ ओरिजिन इंसर्शन, तो ये रटना नहीं पड़ेगा तुम्हें बीटी से देख के, इसका ओरिजिन यहाँ पे, इसका इंसर्शन यहाँ पे, ये सब ऑलरेडी कवर हो जाएगा बजरंग से। ये अभी उसकी भी कराएगा, अनाटॉमी की भी, जनरल अनाटॉमी भी कराएगा। बायोकेमिस्ट्री में वो बायोकेमिस्ट्री में मेरे हिसाब से ना स्लाइड्स पढ़ो, जो जेएसएमयू की स्लाइड्स हैं इनकी पूरी पीडीएफ होती है, और बायोकेमिस्ट्री की स्लाइड्स से अच्छा अभी मेडिस में ना पूरा एक नोट्स टाइप का बना हुआ होगा, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर तुम लोगों को रिटेन नहीं होंगे। ये वो पढ़ाते हैं, एक डॉक्टर है लेकिन वो रिटेन नहीं होता, मतलब वहां पे तुम पेपर देने जाओगे ना वहां पे तुमसे पूछेंगे ये क्या है, इस स्पेसिफिक एंजाइम का नाम बताओ, इसका एक्टिवेटर कौन सा है, तो ये सब चीजें वीडियो में रिटेन नहीं होती, बहुत माइनर चीजें होती हैं, ये वीडियो में मिस हो जाती है। तो इसके अंदर या तो कोई नोट्स टाइप की चीज, और बुक मत यूटिलाइज करना, लिपिन कोड बहुत ज्यादा अजीब है उसके अंदर से, मतलब आता तो है लेकिन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है खाली, उसके अंदर से इतना कुछ नहीं आता, स्लाइड ज्यादा अच्छी है बायोकेमिस्ट्री। और कोई सवाल है? चलो, थैंक यू फिर। बाकी जो भी सवाल हो मुझसे पूछ सकते हैं, मेडिस के जितने भी लेक्चर आएंगे मेडिस वाले से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू मनी भाई, ओवर टू। थैंक यू सो मच ताहा, थैंक यू सो मच। समझता हूँ कि अब तक की बेहतरीन गाइड, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात की, बच्चों के बहुत बेहतरीन बात की। हमारे अगले स्पीकर हैं एलसीएमडी से हैं, फरहान आपका नाम है, जो आपसे बायोकेमिस्ट्री के हवाले से और जनरली सबके हवाले से बात करने आ रहे हैं। ओवर टू यू फरहान। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही? हेलो, आवाज़ आ रही? ओके। आ, मैं जो है अभी आप लोगों से शेयर करूंगा अपनी स्क्रीन, एंड देन वी विल डिस्कस कि हम लोग जो है किस तरीके से अपनी हिस्टोलॉजी की और बायोकेमिस्ट्री किस तरीके से पढ़ते हैं। देखो, बायोकेमिस्ट्री में बहुत सिंपल है। बायोकेमिस्ट्री फाउंडेशन मॉड्यूल में हम सिर्फ अभी उसी की बात करेंगे, बाकी मॉड्यूल्स की बाद में बात करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री जो है आपके पास लॉन्ग बुक्स बताई जाती हैं। जो आपकी ऑफिशियल लॉन्ग बुक है ना वो हार्पर्स है, उसे कोई भी नहीं पढ़ता,
कोई जीनियस हो, कोई भी पढ़ता नहीं है उसे। तो उसके बाद हमें बताई जाती हैं कि आपकी लॉन्ग बुक्स जो है ना वो इंडियन बुक्स हैं, उसमें आपको ये 2 बुक्स बताई जाती हैं। इसको नहीं पढ़ना, टाइम ज़ाया होगा। चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन हम लोग जो है ना पूरा वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम पहले इसको पढ़ते हैं, ट्राई करते हैं, उसमें बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं। तो उसकी वजह उसके बाद हम लोग डायरेक्ट हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जाएँ रिव्यू बुक्स में और शॉर्ट बुक्स में, क्योंकि बात देखो एमबीबीएस में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होता है ना आपका, वो होता है एनाटमी। एनाटमी के बाद आपने पढ़ना होता है फिजियोलॉजी, एंड देन फिजियोलॉजी के बाद आप पढ़ रहे होते हो बायोकेमिस्ट्री एंड देन हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट एनाटमी है, फिजियोलॉजी, तो उसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री कम इम्पॉर्टेंट है, तो उसी वजह से उसको कम से कम टाइम मिल पाता है हमें, और टाइम भी कम देना होता है। तो उसके लिए आप पढ़ते हो रिव्यू बुक जो कि आपकी लिपिनकॉट है, एंड देन शॉर्ट बुक जो है वो आपकी फाइक है। सही है। आपकी फिर रिव्यू बुक्स में लिपिन लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग इसको पढ़ नहीं पाते हैं, तो एंड में जो आपको बचाती है ना प्रॉफ्स के टाइम पे, वो होती है इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री। इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री जो है वो एक बिल्कुल शॉर्ट सी बुक है, टू द पॉइंट लिखा हुआ है। यस, ये पहले ही बता दूं, उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन वो प्रॉफ्स के टाइम पे आपको उसकी फिगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके शॉर्ट बुक्स आपके पास फाउंडेशन मॉड्यूल में ये वाले चैप्टर्स करने होते हैं। बायोफिजिक्स एक अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन आप कर लेना। पीएच बफर्स और एसिड बेस बैलेंस, इसको बस सुपरफिशियली पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके पास रेस्पायरेटरी मॉड्यूल में भी रिपीट होगा। मैंने यहाँ लिख दिया है, RM स्टैंड्स फॉर रेस्पायरेटरी मॉड्यूल एंड फाउंडेशन मॉड्यूल, FM स्टैंड्स फॉर फाउंडेशन मॉड्यूल। फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स और वाइटामिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन मॉड्यूल में हमारे मेरे मैंने मैंने मैं जो है सेकेंड ईयर एमबीबीएस से हूँ LCMD में। तो अभी मेरे एग्जाम हुए हैं, और उसमें हमारे पास टू द पॉइंट जो है इनसे इस बुक से ही, इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री से ही एमसीक्यूज आए हुए थे, और इस चैप्टर्स में से। तो फाउंडेशन मॉड्यूल इस चैप्टर से लाजमी याद करना, एक एक लाइन याद करके जाना, एक एक क्लिनिकल इसमें से लाजमी करना है। सही है। और बायोकेमिस्ट्री जो है उसके आपके पास एमसीक्यूज कुछ कुछ शिफ्ट्स में ज़्यादा आ जाते हैं, कुछ कुछ शिफ्ट्स में कम आते हैं, क्योंकि आपके पास जो एग्जाम्स होते हैं उसमें 4 शिफ्ट्स होते हैं। डे 1 में 2 शिफ्ट्स और डे 2 में 2 शिफ्ट्स। ठीक है। तो आपके पास जो है मेरी शिफ्ट में जो है एमसीक्यूज जो है वो 10-12 आए थे, और वो आप अगर अच्छी तरीके से यूट्यूब चैनल देख लो और शॉर्ट बुक कर लो तो काफ़ी है। आपको ये लॉन्ग बुक्स पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी, टाइम नहीं रहेगा, ना ही आपको रिटेन रहेगा। आप पढ़ तो लोगे लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। तो लिपिन कॉट और इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट है, लेकिन एंड में तो लोग लिपिन कॉट को भी याद नहीं रख पाते। तो शुरू से ही 5 अच्छी तरीके से पढ़ लो, ताकि आपको वो बार बार याद रहे और मल्टीपल रिविजन्स दे सको। और फाउंडेशन मॉड्यूल में ये वाले चैप्टर्स कर लो, काम हो जाएगा। सेकेंड चैप्टर रेस्पायरेटरी मॉड्यूल में सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसको इतना टफ नहीं करना, ये समझ में भी नहीं आएगा अभी। तो ये वाले चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7 इसको लाजमी कर लेना। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की चैनल जो है वो 3 ही होते हैं जो इंसान फॉलो करता है। बाकी चैनल्स लोग बताएंगे, वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये 3 चैनल्स हैं, मैंने यहाँ पे दिखा भी दिए हैं। बायोकेमिस्ट्री के लिए डॉक्टर राजेश, ये पढ़ाते हैं, आपको बोर्ड पर हैं, कुछ लोगों का इनका समझ में आता है। देन वी हैव डर्टी मेडिसिन, यूएसएमएलई के लेवल तक लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये देख सकते हो। एंड देन वी हैव एंजॉयज बायोकेमिस्ट्री, ये आपको जो है वो पूरी एनिमेशन के साथ सिखाते हैं। तो ये 3 आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, और यहाँ पर आपके पास जो है इन्हीं से बच्चे लोग पढ़ रहे होते हैं। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग बायोकेमिस्ट्री? हाँ, फाउंडेशन मॉड्यूल को आप स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जेएसएमयू की स्लाइड पढ़िएगा, हम आपको उसकी ड्राइव की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। जेएसएमयू की स्लाइड्स आप पढ़िएगा, और इंस्टेंट से भी पढ़िएगा लाजमी। कोई और क्वेश्चन? फिर हम हिस्टोलॉजी डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग अब हम लोग जो है हिस्टोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी के लिए आपके पास जो है वो लॉन्ग बुक्स होती हैं, एक आपके पास है जैंक्वेरा और एक आपके पास वीटर्स। इन दोनों का आपने नहीं पढ़ना, इसमें से आपके पास बहुत लेंदी किताबें और कोई फिनिश नहीं कर पाता। इसकी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स देख लेना, डायग्राम्स आ जाती हैं। ठीक है। उसके लिए भी पीडीएफ होता है, जो कि हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। मेडीज में भी ये देखो, इसमें लिखा हुआ होता है कि ऑल हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स वीटर्स से। तो इसके अंदर आपको वो बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट इस तरीके से स्लाइड्स आपको जेएसएमयू में दी जाती हैं। माइक्रोस्कोप में आपको देख के आइडेंटिफाई करना होता है, तो इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो आप डायरेक्ट यहाँ से स्लाइड्स पढ़ते हो,
और आपका काम हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कुछ स्लाइड्स दी हुई हैं, इस तरीके से आपको एक एक स्लाइड देखनी होती है और आइडेंटिफाई करना सीखना होता है। फिर आपके पास ये वाली पीडीएफ होती है, तो यहाँ पे देखो इसने बताया हुआ भी और आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इन लॉन्ग बुक्स को मत पढ़ना, ये आपके सिलेबस में लिखी हुई होंगी लेकिन कभी भी आप इसको नहीं कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इससे डायग्राम्स करना काम हो जाएगा। फिर आती हैं आपकी मेन बुक्स जो आपने करनी है। लाइक हुसैन, लोग कहते हैं कि इसको करना चाहिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमारे एग्जाम में इतने डेप्थ में सवाल नहीं पूछ जितना डेप्थ में लिखा हुआ था। यह आपकी गोल्डन बुक है, शॉर्ट बुक, इसको पूरा रट लो। जो चैप्टर्स होंगे आपके पास सिलेबस में इसको रट लेना। हिस्टोलॉजी का पोर्शन बता रहा हूँ, एम्ब्रियोलॉजी का मैंने नहीं किया इससे। हिस्टोलॉजी से करोगे तो काम हो जाएगा। लाइक हुसैन कॉन्सेप्ट बना दी है आपकी, और शॉर्ट बुक जो है आपकी मेमोराइजेशन के लिए इसी से करना, समझो आपके ये नोट्स हैं। उसके बाद आपके पास फाउंडेशन मॉड्यूल के चैप्टर्स अगर आप लाइक हुसैन से पढ़ रहे हो तो वो ये वाले चैप्टर्स हैं जो आपको करने होंगे, चैप्टर नंबर 1 to 6। हिस्टोलॉजी के लिए सिर्फ 2 ही चैनल्स हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा, एक बाइट साइज मेड है और एक है ऑस्मोसिस। सही है, यहाँ आपकी खत्म होती है हिस्टोलॉजी की स्लाइड। एनी क्वेश्चंस? कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के हिस्टोलॉजी के लिहाज से, बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से? हाँ, ये लेक्चर जो है हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और जो है हिस्टोलॉजी की में जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि बहुत सुपरफिशियली वो चीज़ पूछ रहे थे। तो अगर आप पास्ट टाइम पेपर्स की ऑस्पीस कर रहे हो एंड देन मेडीज में भी आपको हिस्टोलॉजी की स्टेशंस दे दिए जाएंगे विद आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स। और अगर आप ये वाली किताब जो है हिस्टोलॉजी फिरदौस की, इसको अच्छी तरीके से रट लो, आपका काम हो जाएगा। लाइक हुसैन इज टाइम कंज्यूमिंग, इतना डेप्थ में नहीं पूछते हैं। सही है, और आपके पास हिस्टोलॉजी की जो पिक्स हैं वो आपको इंशाल्लाह हम देने, क्योंकि देखो आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हो जाएंगी। एक आपके पास प्रॉफ्स के टाइम पे ये पीडीएफ शेयर हुआ होगा कि ये हम बीटर्स की डायग्राम आ रही है। फिर आपके पास ये वाला पीडीएफ शेयर हुआ होगा कि इसमें देखो कितनी सारी स्लाइड्स हैं, 40 स्लाइड्स। फिर ये वाला पीडीएफ शेयर हुआ होगा 42। तो इंसान बहुत घबरा जाता है कि इंसान करे कहाँ से। तो आपके पास सिंपल सिंपल जो है, ईजी जो है स्लाइड्स, और जो इंपॉर्टेंट है वो इंशाल्लाह मेडीज में शेयर कर दी जाएंगी विद आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स, आसान, जो इंसान को याद भी हो जाए इसी तरीके से। तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी के लिहाज से शुरू से अच्छी तरीके से पढ़ो, इन किताबों को नहीं पढ़ना, सिर्फ इनसे डायग्राम्स देख लेना। और लाइक हुसैन को अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए पढ़ लो, लेकिन इससे एमसीक्यूज नहीं आते, इतना डेप्थ में नहीं पूछते। शॉर्ट बुक फिरदौस कर लो, और लाइक हुसैन के चैप्टर्स हैं अच्छी तरीके से देख लेना, चैप्टर 1 to 6 है। और डायग्राम्स के लिए और आपको समझाने के लिए जो है ना, ये 2 चैनल्स हैं, आपके कॉन्सेप्ट बना देंगे। इसके अलावा कोई और चैनल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बायोकेमिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं, यही बस 3 चैनल्स हैं, इनके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपके पास फाउंडेशन मॉड्यूल की पूरी आप जो है इंस्टेंट से कर सकते हो, और जेएसएमयू की स्लाइड्स, इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फरहान। मैं समझता हूँ कि अब तक की ये 2 बेहतरीन गाइड हमारे पास आ गई हैं, ताहा और फरहान की जानिब से। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की गई है, जो आपके लिए रेलेवेंट थी, जो आपके लिए ज़रूरी थी। इसके बाद हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो पीडीएफ हैं, ये आप सबके साथ शेयर कर दी जाएंगी, सारी पीपीटीज आप सबको मिल जाएंगी। इसके बाद हम बढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जानिब। अब जाहिर है एनाटॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जिसके बगैर एमबीबीएस ही अधूरा है। तो किस तरह से एफएम की एनाटॉमी को आसान करना है, कहाँ से आपको पढ़ना। अच्छा, मैं अपने स्पीकर पे जाने से पहले मैडीज की तरफ से आपको 1 से 2 दिन में एफएम एनाटॉमी के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जो बहुत छोटे होंगे। मैक्सिमम हमारा एक लेक्चर 20 to 25 मिनट्स का होगा, कि जिसको पढ़ के आपको इजीली एफएम की एनाटॉमी एक ही दिन में आप मास्टर कर लोगे। तो मैं बढ़ रहा हूँ अपने अगले स्पीकर की जानिब। यासिर मंशा आपका नाम है, आप जीएल हैं, और साथ में आप 4th ईयर एमबीबीएस की जेएसएमयू के स्टूडेंट हैं। ओवर टू यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी।
ठीक है, ठीक है। मेरा नाम यासिर मंशा है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस का जिनात सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं आज आपको गाइड करूँगा एनाटमी के हवाले से। अभी पहले आपको एनाटमी के बारे में बताया गया कि हिस्टो के हवाले से और एम्ब्रियो के हवाले से, बायोकेमिस्ट्री के हवाले से और मोस्ट प्रोबेबली फिजियो के हवाले से भी बता दिया गया होगा। तो मैं आपको आज बताने लगा हूँ जनरल एनाटमी के हवाले से, जो हमारे पास एनाटमी का हिस्सा है। पहले हमारे पास सिर्फ सिंपल एनाटमी आती है। एनाटमी में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। जनरल एनाटमी जिसे ग्रॉस स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपिकली हम देख रहे होते हैं हिस्टो में, और एम्ब्रियोलॉजी हम अलहदा हिस्टो उसके अंदर आती है, एनाटमी के अंदर आती है। तो आज हम पढ़ने लगे हैं जनरल एनाटमी के हवाले से, उस गाइड लेने लगे हैं उसके हवाले से। तो मेरे पास एक बुक अवेलेबल है जो आप लोगों के पास भी होगी यकीनन, BD84 नाम है उसका, शॉर्ट बुक या हैंड बुक कहते हैं उसे, और यही इस्तेमाल होती है फाउंडेशन मॉड्यूल के लिए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पढ़ी जाती है हमारे पास, चाहे आप खुद पढ़ लें या चाहे आप वीडियो सोर्स देख लें। हमारे पास इसके अंदर चैप्टर्स के डिस्कशन, सबसे इंपॉर्टेंट इसके चैप्टर्स ही हैं, और उसके अंदर कुछ बातें हैं सारी, और ये सारी की सारी आपने जो बातें यहाँ पढ़ेंगी बुक के अंदर, वो सारे के सारे आपने इंटर के अंदर पढ़ा होगा। कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है कि जो आपने ना पढ़ा हो, जैसे फॉर एक दो टॉपिक के अलावा, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल स्केलेटन के हवाले से, बोन्स के हवाले से आपको पता है कि बोन्स 2086 होती हैं, बच्चों में फीटस के अंदर ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा आपने ब्लड सप्लाई वगैरह, जॉइंट्स पढ़े होंगे। अब सेकंड ईयर आप करके आए तो इंटर आपकी बुक तो माशाल्लाह वैसे ही सेकंड ईयर की बहुत अच्छी हो गई है, सिंध टेक्स्ट बुक। तो उसके अंदर जॉइंट्स तो बहुत अच्छी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, और अच्छे अच्छे जॉइंट्स एडिशन हुए हैं। तो और इसके अलावा मसल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं। इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ के आए होंगे, लिम्फेटिक भी, नर्वस सिस्टम भी, और एक नया टॉपिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, स्किन एंड फेशिया वाला, और साथ में इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है और अलहदा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंट्रोडक्टरी जो सिस्टम है सारा की सारा, वो हमारे पास बॉडी पोजीशंस के हवाले से है, बॉडी कैटिंग एनाटॉमिकल पोजीशंस के हवाले से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पेज ओपन करके दिखाऊं, तो आपका जो पेज है हमारे पास, पेज नंबर हमारे पास ये वाला, सॉरी, पेज नंबर है हमारे पास, पेज नंबर 10, और इसमें लैंग्वेज ऑफ एनाटमी के बारे में लिखा हुआ है। मैं इसलिए इनके ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट्स पूछी जाती हैं ऑस्पी के अंदर एंड अनऑब्जर्व्ड ऑस्पी के अंदर, दोनों जगह ये पूछी जाती है। क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं, लेकिन हमारे पास सबसे ज़्यादा ये वाइवा के अंदर पूछी जाती हैं। टीचर कहते हैं कि भाई एनाटॉमिकल पोजीशंस कौन सी होती हैं, इसमें हैंड की पोजीशन क्या होती है या आई की पोजीशन क्या होती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, और इम्पॉर्टेंट इसी हवाले से है कि इसकी लैंग्वेज ऑफ एनाटमी के अंदर सारे ये टॉपिक्स जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, कंप्लीट। और इसका वीडियो सोर्स मेरे हिसाब से आप अगर जनरल एनाटमी पढ़ रहे हैं तो एनाटमी इतनी मुश्किल नहीं है कि आपको अगर वीडियो देखने की ज़रूरत हो। लेकिन आपने अगर वीडियो देखनी है, अगर आप बुक नहीं रीड कर सकते और आपको अगर रिटेन नहीं रहती बुक, तो मेरे हिसाब से आप डॉक्टर आसिफ कुरैशी, जो आपको पहले बताया गया था हिस्ट्रो के हवाले से आई थिंक, तो वही डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिफ कुरैशी, यूट्यूब पे लेक्चर हैं उनके, और वो बुक रीडिंग ही कर रहे होते हैं। तो बुक रीडिंग बहुत अच्छे तरीके से वो कर रहे होते हैं, और साथ में उनका हो सकता है कि वो पीपीटी, मेरे पास तो ये नहीं है, और सेकंड नंबर पे जो आपके पास जो पीले पीपीटी हुई हैं वो आपको शेयर कर दी जाएंगी। और जो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि हमारे पास जो उसके जनरल एनाटमी के जो टीचर्स हैं वो हैं हमारे पास सिर्फ एक ही, वन एंड ओनली, डॉक्टर आसिफ कुरैशी, जो बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छी क्लासेस लेते हैं वो, और सिर्फ उसके ऊपर पढ़ाते हैं, बुक रीडिंग करके वो पढ़ा रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो समझाते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर इस बुक से, जनरल एनाटमी की जो बुक है हमारे पास, इसके अंदर से हमारे पास वो बनती हैं ऑस्पी का स्टेशन। मेरी बारी में फर्स्ट ईयर में बना था, मैं तो अब फोर्थ ईयर में आ गया हूँ, मुझे एक स्टेशन अपना याद है उसके हवाले से, बोन्स के हवाले से। बोन्स के हवाले से मुझसे पूछा गया था कि क्लासीफाई द बोन्स। अब क्लासीफाई द बोन्स हमारे पास किस लिहाज से क्लासीफाई करना, ये मुझसे नहीं कहा गया था, सिर्फ कहा गया था क्लासीफाई द बोन्स। अब मैंने दोनों तरीके से क्लासीफाई कर दिया था अकॉर्डिंग टू शेप्स, मतलब वो लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, सिस्मॉइड बोन्स वगैरह, इस तरह जो बोन्स आती हैं वो सारी की सारी इनकी एग्जांपल्स के साथ मैंने क्लासीफाई कर दिया था। साथ में कहा कि और कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, तो आपने वो क्लासिफिकेशन भी याद रखनी है, जैसे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, तो जैसे मेम्ब्रेनस डर्मल वाली, या कार्टिलेजिनस बोन्स, या मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस। तो ये जितनी तरह की हमारे पास क्लासिफिकेशन है बोन्स की, वो आपने लाजमी याद रखनी है। इंपॉर्टेंट ऑस्पी से रिलेटेड एमसीक्यूज पॉइंट यहीं से बनते हैं। और ऑस्पी कंपाइल हो के आप क्या कहते हैं, मेडीज भी आपको सेंड करता है। आपने अगर ऑस्पी लेनी हो और देखनी हो तो आप मेडीज से रब्ता करके मेडीज से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल कंसाइज तरीके से एक जगह इकट्ठी आपको पास्ट ईयर जितनी भी मौजूद हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगी।
जाएंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ 2 पास पेपर मिल जाएंगे, बैच 27 28 के मिल जाएंगे, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे 2023 या 22 से अभी तक चलते हुए आ रहे हैं। 2022-23 से मुराद ये कि 2022 में जो बैच ग्रेजुएट हुआ है उनकी फर्स्ट ईयर वालों की भी चलती आ रही है। तो मेरे कहने का मकसद ये है, तो ये कंपाइल होके आपको मिल जाएंगे, कहीं और आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा हमारे पास जॉइंट्स का चैप्टर है। जॉइंट्स के अंदर हमारे पास उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट वहीं से ही बन रहे होते हैं, सुपरफिशियल बन रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट की एग्जांपल पूछ लेते हैं कि एग्जांपल क्या क्या होती हैं और कौन सा नहीं होता, सॉरी। और इसके अलावा मसल्स मसल्स वाला चैप्टर है। जी, चैप्टर्स फ्रॉम बीडी हमारे पास है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। चैप्टर फ्रॉम बीडी हमारे पास पहला है, चैप्टर नंबर 1 2 3 4। सर्कुलेटरी सिस्टम करना चाहें तो कर लें, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये वैसे उसमें पढ़ेंगे सीवीएस के मॉड्यूल में, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आसान सा चैप्टर है जो आपने इंटर में पढ़ा होगा। और लिम्फेटिक सिस्टम आपने पढ़ना है, नर्वस सिस्टम पढ़ना है, स्किन एंड फेशिया। ये स्किन एंड फेशिया जो है आपको एक्स्ट्रा है, सेकेंड ईयर से एक्स्ट्रा है, और ये आपको पढ़ना लाजिम है, क्योंकि ये इसके अंदर जो आपके पास आएंगी चीज़ें, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन वगैरह, हेयर्स वगैरह, नेल्स वगैरह, स्वेट ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड आप वैसे हिस्ट्रो में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन जो नेल्स का स्ट्रक्चर है, हेयर्स का स्ट्रक्चर है, या स्ट्रक्चर ऑफ स्किन है, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ स्किन अगर आप जब पढ़ेंगे तो हमारे पास स्किन की 3 लेयर्स आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी थी, क्या होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। लेकिन आप आपका लेवल अब अपग्रेड हो गया, आप एमबीबीएस में माशाल्लाह से आ गए हैं, और मेरिट पे आए हुए हैं सारे। तो हमारे पास क्या होता है सिचुएशन के, क्या कहते हैं, जो एपिडर्मिस होती है वो 5 हिस्सों में मजीद और डिवाइड हो जाती है। स्ट्रेटम बैसिलस, कॉर्नियम, ग्रेनुलोसम वगैरह इस तरह कुछ करके है, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है, ये भी बहुत है। तो ये वाली सिचुएशन है, तो थोड़ी बहुत डीपनेस आ जाती है, लेकिन ये है कि सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो आप ये लेक्चर अगर ले लें, या फिर आप बीडी 84 खुद ही पढ़ लें, हैंड बुक जो शॉर्ट बुक है वो पढ़ लें, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ऑस्पी भी आपकी इसी चीज़ से कवर हो जाएगी, और इसी चीज़ से आपके एमसीक्यूज भी निकल जाएंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप होते हैं, और ऑस्पी से रिलेटेड भी यही सारे क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा और क्वेश्चन नहीं आता। और अगर आप ऑस्पी से रिलेटेड वही हैं जो आपके पास पास पेपर में है, पास पेपर मोस्टली ऑस्पी रिपीट होते हैं, तो वहाँ से आप कर लेंगे तो आपकी ऑस्पी अच्छे तरीके से निकल जाएगी। और जो फाउंडेशन की थ्योरी आती है वो भी तकरीबन मोस्टली जो आती है वो एम्ब्रियो से आती है, क्योंकि एम्ब्रियो मेजर चंक फाउंडेशन का है। लेकिन अगर आप हैंडबुक करके जाएंगे तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि आप एमसीक्यूज अच्छे तरीके से मजीद और कर सकते हैं। तो ये था मेरी तरफ से, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यासिर मंशा, फोर्थ ईयर एमबीबीएस जेएसएमयू से। इसके बाद एक बहुत ही खास स्पीकर आने जा रहे हैं, और आप फर्ज कीजिए कि आपका कल फाउंडेशन मॉड्यूल का एग्जाम है। आप एक दिन पहले सोच रहे हैं कि मैं अब क्या पढूं, मैं किस तरह से तैयारी करूं। तो उस एक दिन में फाउंडेशन मॉड्यूल को किस तरह से मास्टर करना। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इसी तरीके की तरफ जाना, नहीं। पहले कोशिश करें कि पढ़ लें, अच्छी पढ़ाई कर लें। अगर कोई रह जाए, अगर कोई ना पढ़ सके, और बिल्कुल एंड में उसको ख्याल है पढ़ने का, और जब फाउंडेशन मॉड्यूल में 1 या 2 दिन बचे हुए हों, तो हमारे पास 24 आवर्स गुरु मौजूद है, जिसको हम आहद शर्वानी के नाम से जानते हैं। आप फोर्थ ईयर एमबीबीएस के जेएसएमयू के स्टूडेंट हैं, और 24 आवर्स प्लान बनाने के मास्टर हैं। तो आपसे अब बात करने आ रहे हैं 24 आवर्स गुरु जनाब आहद शर्वानी, फोर्थ ईयर जे। ओवर टू यू आहद। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? अच्छा, सो इंट्रोडक्शन दे दिया गया मुनीब की तरफ से, सो थैंक बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों का एडमिशन हुआ। अब आप लोग चूंकि मेडिकल कॉलेज में आ गए, सो अब इंशाल्लाह डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। सो टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स करना है, क्योंकि ये भी एक स्किल और आपको ये 5 साल के दौरान आपको डेवलप करनी है, क्योंकि अभी लाइफ में आके बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें आनी है। सही है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें, सब्जेक्ट वाइज चूंकि
बहुत अच्छी और डिटेल गाइडेंस दे दी गई है सीनियर्स की तरफ से, मेरे बाकी जो फेलोज हैं उनकी तरफ से, और उम्मीद आप लोगों को चीज़ें काफ़ी क्लियर भी हुई होंगी। सो अब यह है कि देखें लास्ट डे जो मेंशन हो रहा है या 24 आवर्स, वो यही है कि ना, अगर आपने पूरे जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, उसमें आपने पढ़ा मॉड्यूल के, अब आखिर में अगर आप उसको यूटिलाइज ना कर सके सही तरीके से, कि आपने आखिर के 1-2 दिन अच्छे तरीके से उनको रिवाइज नहीं किया या चीज़ों को नहीं देखा, तो आपकी पिछली मेहनत जो है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं रह पाएगी। और अगर आपकी फ़ायदेमंद रह गई, आखिर के आपने 1-2 दिन अच्छे से गुज़ार लिए, तो फिर बल्ले-बल्ले आप भी खुश हो जाएँगे, वही मैंने मेहनत की थी और वो वसूल हो गई। सही है? तो अब यही है कि अब अगर किसी बच्चे ने पूरे अपना मॉड्यूल के टाइम पे पढ़ा है, तो उसने क्या करना है, या जिस बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना उसने क्या पढ़ा, तो उसने क्या करना है। तो अब देखें, सबसे पहले तो ये कि 2 तरह के बच्चे हैं। एक होते हैं जो सिर्फ़ लेक्चर्स लेने पे फ़ोकस रखते हैं, कोशिश करते हैं कि यार बस मैं सुन लूँ, मेरा भी रीड करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आखिरी दिन है, पहले ही बंदा परेशान होता है कि पहला मॉड्यूल है उसके लाइफ़ का ही, मेडिकल कॉलेज का, और पेपर में भी वो पहले ही आता है प्रोफ्स में। सो उसमें अगर आप रीडर हैं, आपको बुक रीडिंग अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि मैं रीड कर लूँ, तो उसके लिए पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये है कि एक आपको फिरदौस बताई गई होगी फिजियोलॉजी के लिए। सो अगर आप उसको रीड कर लें तो आपका मैक्सिमम काम कवर हो जाएगा वहीं से, या अगर आप मेडिकल गेटवे के नोट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। दोनों से आपका जो है गाइड का मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है? अब उसके बाद अभी फरहान ने आपको एक बुक दिखाई होगी फिरदौस की, हिस्टोलॉजी की। तो उसमें सिर्फ हिस्टोलॉजी नहीं है, उसके अंदर हिस्टोलॉजी भी है, जनरल एनाटॉमी भी है और एम्ब्रियोलॉजी भी है। तो अगर आप उस बुक से रीड कर लें, आखिरी दिन की बात करूँ, तो आपके वो तीनों पोर्शन भी कवर हो जाएँगे, क्योंकि उसके अंदर जो है मेन बातें हैं सारी, और पेपर में मेन चीज़ें ही पूछते हैं। उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो इतनी फालतू चीज़ें पूछें बच्चों से, कि वो बस तंग करने वाली बात वो नहीं करते। इतने बुरे नहीं है एग्ज़ामिनर्स वगैरह। सो मेन चीज़ें ही पूछते हैं, और आपने एट द एंड पेपर ही सॉल्व करना है अच्छे से। तो इतना परेशान होने की बात नहीं, आप वो फिरदौस से भी अगर आप तीनों चीज़ें रीड कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे, तो आपके लिए मोर देन इनफ है। फिर बच्चे बायोकेमिस्ट्री के लिए तो यही है कि फाइक है, इंस्टेंट फाइक। सो बायोकेमिस्ट्री आप वहाँ से अगर रीड कर लें तो आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। काफ़ी क्या, पूरा वहीं से कवर होगा, फाउंडेशन मॉड्यूल वहीं से करते हैं। और फाउंडेशन मॉड्यूल की बायोकेमिस्ट्री की यही खास बात है कि आपने तकरीबन सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं। अपने इंटर के टाइम पर, एमकेट के दौरान आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। अब यहाँ पे थोड़ी-सी डिटेल ऐड हो गई, इतना खास फ़र्क नहीं है। तो अगर आप वहाँ से रीड दे दें तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है? ये, और आप पास पेपर सॉल्व कर लें मॉड्यूल के, ऑस्पी आती है तो आप एसेंशियल्स से देख लें, आपके लिए आखिरी दिन रीडर्स के लिए काम हो गया ये। अब अगर हम बात करें लेक्चर्स की, कि भाई अगर कोई लेक्चर लेना चाहता है, तो उसके लिए फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि एक चैनल है एमबीएस मेडी लेक्चर्स। सही है? उसके पास प्लेलिस्ट बनी हुई है जल्दी जल्दी गाइडन के नाम से, जल्दी जल्दी गाइडन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसके अंदर उन्होंने फिजियोलॉजी के एक एक चैप्टर जो है उसको कवर करवाया हुआ है 20 से 25 मिनट के अंदर, और गाइडेंस से कवर करवाया हुआ है। तो अगर किसी बच्चे ने पूरे अपने मॉड्यूल के दौरान पढ़ा है अच्छे से, तो अगर वो आखिर के दिन 20 से 25 मिनट में एक एक चैप्टर देखता जाए, तो 2.5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, उसकी पूरी गाइडेंस रिवाइज हो जाएगी। और अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और उसने कसम खाई हुई थी कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं ये डेयर करूंगा लाइफ में कि पहला मॉड्यूल और मैं ना पढ़ के जाऊंगा, तो उसके लिए भी है कि उसको कुछ आइडिया हो जाएगा कि भाई इस चैप्टर में क्या बात हो रही है, किस तरीके से क्या चीजें चल रही हैं। तो अगले दिन बिल्कुल जीरो नहीं होगा। वो अगले दिन अगर जाएगा पेपर देने, तो वो कुछ साइंस लड़ा कर वो जवाब दे सकता है। सो फिजियोलॉजी के लिए तो एमबीएस मेडी लेक्चर्स जल्दी जल्दी गाइडन की प्लेलिस्ट है, आप उसे देख सकते हैं। चैप्टर का नंबर डालें और आप जल्दी जल्दी गाइडन भी लिख दें यूट्यूब पर, तो भी आपको वो मिल जाएगा लिंक। फिजियोलॉजी के लिए तो ये हो गया। और एम्ब्रियो के लिए पहले तो आप अगर नजीब से पढ़ते हैं फाउंडेशन मॉड्यूल की एम्ब्रियो डिटेल, तो वो बहुत आउट क्लास है। मतलब कि उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हो, इतनी जबरदस्त उनकी वीडियोज और नोट्स हैं कि आपको सब चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। लेकिन वो बात पहले की है। अब लास्ट डे तो या तो आप पिछला रिवाइज कर लें उनको, अगर आप कर सकते हैं, इतना आपके पास टाइम है, सब कुछ है,
और आपका पहले इतना अच्छा रिवीजन हुआ है कि आप आखिर में बैठे और 2-2.5 घंटे के अंदर पूरे एम्ब्रियो रिवाइज करके खत्म कर दें, तो सही है। लेकिन अगर आपने पहले नहीं की हुई एम्ब्रियो, या आप आखिर में चाह रहे हैं यार मैं इतना डिटेल रिवीजन नहीं कर पा रहा मैं, तो आपके लिए कि ब्रेनलेस की वीडियोज हैं 2.5-3 घंटे की होंगी मैक्सिमम, शॉर्ट वीडियोज हैं, टोटल मिला के मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ। तो अगर आप वो वीडियोज देख लें तो आपकी एम्ब्रियो भी वहां से कवर हो जाएगी मोस्टली, मतलब कि तकरीबन सारा पार्ट वहां से कवर हो जाएगा। तो आपकी हो गई एम्ब्रियो, आपकी हो गई फिजियोलॉजी। अब जनरल एनाटॉमी का एक तो है आसिफ कुरैशी का चैनल, और भी यूट्यूब पर बहुत सारे अब तो चैनल्स आ गए, जौहरी एमबीबीएस भी है, और टीसीएमएल आई थिंक नहीं है जनरल एनाटॉमी में, मुझे उसका एग्जैक्ट याद नहीं। तो ये डिटेल वाले हैं। लेकिन अगर आपने आखिरी दिन करना है तो आप देख सकते हैं, इतनी लंबी वीडियो नहीं है क्योंकि इतने टॉपिक्स नहीं है। या फिर अब जैसा कि मुनीब ने आपको बताया कि मेडीज की तरफ से भी लेक्चर्स अवेलेबल होंगे 1-2 दिन में इंशाल्लाह। तो अगर 20-20 मिनट में एक चैप्टर आपका कवर हो रहा है तो वही बात 2-2.5-3 घंटे के अंदर आपकी जनरल एनाटॉमी भी कवर हो गई। तो मेरे नजदीक तो इससे बेस्ट आपका ऑप्शन और कोई हो नहीं सकता। आपकी हो गया जनरल एनाटॉमी भी कवर यहाँ से। हिस्टोलॉजी में मेन टॉपिक्स जो हैं उनसे एग्जांपल्स वो पूछते हैं, इतना डीप नहीं जाते, कि अगर आप फिरदौस से रीड कर लेंगे ना तो आपका बेस्ट हो जाएगा। वरना फिर अगर आप वीडियोज ही देखना चाहते हैं उसकी भी, तो फिर आप वो रैंडम यूट्यूब पर लिखेंगे टॉपिक्स, तो आप वहां से देख सकते हैं। और एमबीएस मेडी लेक्चर्स में भी कवर करवाया हुआ है हिस्टोलॉजी का, लेकिन वो है कि वो थोड़ी डिटेल वीडियो है, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी है। तो आखिर के दिन अगर आप, बेहतर यही है कि आप फिरदौस रीड कर लें, वरना फिर आप शॉर्ट रैंडम वीडियोस देख सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है। अब बचे वही बायोकेमिस्ट्री की बात। तो बायोकेमिस्ट्री में फिर जैसा कि बता चुके हैं कि 3-4 चैनल्स हैं मशहूर, एंजॉय, डॉक्टर राजेश, डर्टी मेडिसिन वगैरह। तो वही है, उनकी भी वीडियोस थोड़ी लेंथी हैं, तो अगर आप वहां से करना चाहें तो आप वहां से भी कर लें, लेकिन उसकी भी ऐसा इतनी नीड नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने जो इंटर में पढ़ा हुआ है वही है, थोड़ा सा डिटेल ऐड होगी। तो अगर आप 5 भी रीड कर लें तो आपके लिए मोर देन इनफ है, इतनी परेशानी की बात नहीं है, हो जाएगा। बस जल्दी अगर आप एक रिवीजन दे दें तो आपका ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट थे। आखिरी दिन का ये प्लान है कि आप मतलब कि इस तरीके से स्मार्ट वर्क करके अगले दिन अपेयर हो, क्योंकि आखिर में अगर आप मेहनत कर लेंगे सही तरीके से, मतलब कि यूटिलाइज कर लेंगे 1-2 दिन, तो आपकी जो है तैयारी वो अच्छी हो जाएगी। सही है। और पास पेपर्स तो करने ही करने हैं सबने, मॉड्यूल के टाइम पे मॉड्यूल के करने हैं। और अगर प्रॉफ का टाइम आ चुका है तो प्रॉफ के टाइम पर जो है ये है कि बहुत ज्यादा पास पेपर्स होते हैं, तो आप प्रॉफ के टाइम पर फिर जो प्रॉफ के पास पेपर्स हैं उनको भी कर लें, तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि उससे पहले भी आपको 1-1.5 मंथ मिला हुआ होगा, तो आप वहां से करके आप उसको कवर कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सो यही चीजें थी, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला मॉड्यूल भी इसका ही है, पहला प्रॉफ का पेपर भी इसका ही होगा। लेकिन अगर आप रिलैक्स होकर अच्छे से तैयारी करेंगे कॉन्फिडेंस से, तो आपका अच्छा रिजल्ट भी आएगा, पेपर भी सब अच्छे होंगे, और अगले मॉड्यूल्स के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो मेरी तरफ से यही था। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लें। यार अगर आप ये गाइड कर दें कि पास्ट पेपर्स का एक्सेस हमें कहाँ से मिल जाएगा? पास्ट पेपर्स का यार ये होता है कि एक तो ड्राइव्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, जो आपके सीनियर्स हैं ना, इमीडिएट सीनियर्स, उनके पास ज्यादातर ये लिंक्स मिल जाते हैं। उन्होंने ना पास्ट पेपर के पूरे लिंक बनाए हुए होते हैं, उसके अंदर शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर्स लिखे हुए होते हैं, जो आते हैं ना वो क्वेश्चन लिख कर आ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा। एक तो ये है। या फिर आप क्रैक देख लें, क्रैक की बुक के अंदर, लेकिन वही बात है कि उसके अंदर भी यही पास्ट पेपर्स हैं, लेकिन उसके अंदर कीज की ना मिस्टेक होती है अक्सर जगह। तो अगर आप पास्ट पेपर्स कर रहे हो और की मिस्टेक हो जाए, आखिरी का वक्त चल रहा है, पहली परेशान है, और कीज में आप देख रहे हैं अलग आंसर आ रहा है, आपने जो सोचा था, पहले समझा था, कॉन्सेप्ट लगाया था, वो अलग था, आपने जवाब देखा वो अलग हो गया, तो आप और कंफ्यूज होते हैं। सो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, ये नहीं कि सारी गलतियां हैं, लेकिन कुछ गलतियां हैं, और आप खुद से सिर्फ रीड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर उन्हीं पास पेपर्स को या फिर आप मेडिस के जो है वो अपना सब्सक्रिप्शन ले लें, ये अभी जारी करेंगे तो आप उसके भी कर लें, क्योंकि उसके अंदर ये होगा कि वेरीफाइड होंगे सब, जो सीनियर्स हैं हमारे उन्होंने चेक किए होंगे वो आंसर्स। और पास्ट पेपर जो है आपने लाजमी करके जाना है, क्योंकि 4 शिफ्ट्स में पेपर होता है आपका प्रॉफ का, तो उसके अंदर क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं। पहली शिफ्ट में कहीं आ गया कुछ, फिर सेकंड में कुछ आ गया, थर्ड में कुछ आ गया, फोर्थ में कुछ आ गया, या फिर अगर वो क्वेश्चन रिपीट नहीं भी हुआ एग्जैक्ट, तो उसका पैटर्न रिपीट हो जाता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये क्वेश्चन मैंने पहले भी देखा हुआ है,
इस तरीके से मैं अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो हो जाएगा ये। ओके, और कुछ सवाल? चलें ठीक है, अभी कोई सवाल नहीं है तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। अभी टाइम है, आप लोग साथ साथ तैयारी करते रहें ताकि आखिर में मुश्किल ना हो। और बाकी ये कि आपके जो है मेडिस वाले आपके साथ हैं, आप कभी भी कुछ भी पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए। तो आप पढ़ें अच्छे से, इंशाल्लाह पेपर आपके अच्छे होंगे और इस जर्नी को एंजॉय भी करना है। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच आहद शेरवानी, थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ कि अब तो इस गाइड के बाद कोई बच्चा भी फाउंडेशन मॉड्यूल में पीछे रह सकता नहीं है, क्योंकि यासिर भाई और आहद ने जो बेहतरीन गाइड आपको दी है उसके बाद हर बच्चा एफएम को मास्टर कर रहा होगा। अच्छा, जहां तक आहद ने पास पेपर की बात की तो मैं यहाँ भी बताना चाहूंगा कि मैडीज की कंपाइल्ड पीडीएफ्स हैं कि जिसमें आपको जेएसएमयू के और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज के पिछले 10 सालों के पास पेपर क्वेश्चंस मिल रहे होते हैं सॉल्व में विद एक्सप्लेनेशन। और फिर हमारी एनालिसिस के मुताबिक इस साल जो हमारे पीडीएफ से तो प्रॉफ के अंदर 70% वो एज इट इज रिपीट हुए। मैं यहाँ पे आपको और बताना चाहूंगा कि मैडीज अगले 10 दिनों में अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रहा है। उस वेबसाइट में आपकी स्टडी गाइड में जितने टॉपिक्स हैं आपको उन तमाम तर टॉपिक्स के 30 to 40 एमसीक्यूज स्ट्रेट फ्रॉम द पास्ट पेपर, स्ट्रेट फ्रॉम योर बुक, फ्रॉम योर स्लाइड मिल रहे होंगे। और उन उन तमाम तर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपको उन उन क्वेश्चंस का वीडियो लेक्चर भी मिल रहा होगा। हमारे इंस्ट्रक्टर्स उस टेस्ट को, स्पेसिफिक टेस्ट को जो आपके 30 एमसीक्यूज होंगे पर टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे होंगे और साथ में उस टॉपिक का हवाला भी आपको दे रहे होंगे। मैं जल्दी से आपको जरा एक बेसिक सी मैडीज का डेमो देना चाह रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट किस तरह की होगी, कैसे लॉन्च हो रही होगी। तो मेरा ख्याल है आप सबके पास अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये हमारी वेबसाइट का एक डेमो है जो अगले 10 दिनों में आपके सामने लाइव होने जा रहा है। इस वेबसाइट में आपको आपके पास पेपर्स भी मिल रहे होंगे, आपको ऑस्पी प्रिपरेशन करवाई जा रही होगी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे होंगे और जितनी भी किताबें हैं मेडिकल से मुंसलिक जो किताबें हैं, जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं, वो सब की सब आपको मैडीज मैडीज के जरिए से मिल रही होगी। और ये वेबसाइट हमारी इंशाल्लाह अगले 10 दिनों में हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं और उसमें आपको तमाम तर चीजें इजीली मिल रही होंगी। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वेबसाइट पे जाने से पहले एटलीस्ट फाउंडेशन मॉडल हम आपको अभी दे दें। 1 से 2 दिनों में हमारी कोशिश है कि हम फाउंडेशन मॉडल अवेलेबल कर दें कि जिसमें जो जेएसएमयू की और बाकी यूनिवर्सिटीज की स्टडी गाइड है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि एनाटॉमी के स्टडी गाइड में 20 टॉपिक्स हैं, तो जो एज इट इज स्टडी गाइड है वही टॉपिक्स हमारे आपको वेबसाइट में मिल जाएंगे कि जिसमें आपको हर एक टॉपिक के, मैंने कहा कि 30 एमसीक्यूज मिल रहे होंगे पास्ट पेपर से और डिफरेंट रिसोर्सेज से। और फिर हमारे ही इंस्ट्रक्टर्स उनको एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे। बायोकेमिस्ट्री के लिए जेएसएमयू कभी भी डिटेल में नहीं जाता। जेएसएमयू सिर्फ और सिर्फ बायोकेम में क्लिनिकल्स की बात करता है, आपसे क्लिनिकल्स पूछता है। तो हमारी वन शॉट वीडियो एफएम क्लिनिकल पे आपको मिल जाएगी कि जिसको पढ़ के आपकी बायोकेमिस्ट्री के तमाम तर क्वेश्चन निकल जाएंगे। हमारी 3 से 4 वीडियोस एफएम एनाटॉमी की 20 से 25 मिनट की होंगी कि जिसको पढ़ के, जो आहद ने कहा कि 25 से 30 मिनट में, कि चले 2.5 घंटे में आपकी एनाटॉमी इजीली हो जाएगी। फिर हमारे ही इंस्ट्रक्टर्स एक और आपको वीडियो देंगे कि जिसमें हिस्टो की तमाम तर स्लाइड्स के किस तरह से आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से कौन सी एपिथेलियम आप कैसे पहचानेंगे, ये सारी की सारी बातें आपसे हमारे इंस्ट्रक्टर्स कर रहे होंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, मैडीज आपके साथ है। जितने इंस्ट्रक्टर्स आज थे वो सारे आपके साथ हैं और आपके फाउंडेशन मॉड्यूल को बेहतर बनाने में, बल्कि ना सिर्फ फाउंडेशन मॉड्यूल बल्कि आपकी पूरी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ होंगे। आपकी सहमतों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी पीडीएफ शेयर हुई हैं आज के इस वेबिनार में वो सब आपको आपके ग्रुप पे मिल जाएंगे। बहुत